how to begin our flying training either in USA, South Africa or India. आपको सिर्फ 200 घंटे करने हैं ना, तो आप आ जाओ, 3 महीने का टाइम लेके मैं खत्म करके भेज दूंगा। 300 घंटे हो, 200 300 घंटे कर लो, जितना करो। बहुत प्लेन्स है वहाँ पर। गाड़ी सीधी नहीं चली तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको? आपको पेपर पे एयरक्राफ्ट ज़्यादा दिखाए जाते हैं, दे सो यू 25 एयरक्राफ्ट बट वर्किंग इज अराउंड लाइक 5 to 7, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तो है 200+। कॉस्ट जो ब्रोशर में जो डालते हैं, लिखते हैं, वो चीप होता है सिर्फ पेपर पे, ना कि रियल लाइफ में। कि आप सिर्फ पायलट ना बने, आप एविएटर बने। So hello everyone, welcome to Horizon Aviation Academy in partnership with Skyview Aviation USA. On the panel we have today Captain Raghav, Captain Jay Vyas, and a lot of you are already familiar with me. I hope so. So today's agenda is very simple. We want to know about how to begin our flying training either in USA, South Africa or India. A lot of you might be having budget constraints. So that is one of the reasons why you end up choosing India or South Africa. But the current market scenario does not look the same. Things have changed. The so-called budget flying in South Africa is not true anymore. So that is where I also have one of our student, Unkarsh, right now is in South Africa doing his training. So when he initially went to South Africa, the quotation given to him was different. But now, recently, like last week, he called me and he started saying to me, "Sir, whatever the package we got convinced by some other agent is not true anymore. We are somewhere paying around 60 lakh rupees." So when I say this, it does not sound believable. That is why I requested him to give some of his time to us, join the meeting, and also interact with you. So the agenda of this meeting is very simple. We will try to calculate each and every expense which you will spend throughout your flying training. Doesn't matter either it is in India, USA or South Africa. Let's have a clear-cut idea of how much in the end you are going to totally spend by the time you reach your desired goal, that is joining the airlines. Okay. So let's begin with Captain Jay Vyas. Let me ask him to introduce himself. Good evening, everyone. My name is Jay Vyas. I'm the owner of Skyview Aviation, and thank you, Captain Gurujot, and the entire team here for helping set this up. I originally started my journey from India about some 20 years ago. I started the training. और तो कुछ 20 साल पहले मैंने इंडिया से स्टार्ट किया था। Okay, just one second. How many of you can understand Hindi here? Almost everyone? हिंदी सबको ठीक है? पीछे पेरेंट्स को Hindi. और अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी कहीं पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बेझिझक पूछिए। दैट इज व्हाई वी आर हियर। इसीलिए हम यहाँ पे है कि आमने सामने ही बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है, ब्लैक एंड वाइट, ऑल द नॉलेज कैप्टन गुरुज्योत हैज बीन स्प्रेडिंग सो फार। तो आप जो भी क्वेश्चन है, छोटा बड़ा, बिल्कुल पूछिए, विल क्लियर इट अप। तो मैंने कुछ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो, जब आप में से काफ़ी लोग का तो अभी जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे मैंने फ्लाइंग जर्नी स्टार्ट किया था। और मैंने थोड़ा फ्लाइंग इंडिया में भी किया, नॉर्थ इंडिया में कुछ 170 आवर्स। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूएस जाने की, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके फ्लाइंग की। दोनों जगह का मैंने फ्लाइंग देखा है। डे एंड नाइट डिफरेंस जो इंडिया में है, जो यूएस में है। कुछ जगह इंडिया में भी अच्छी फ्लाइंग होती है, लेकिन ज़्यादातर तो बस यही है कि कुछ भी करके आपको 200 घंटे करवा के आपको पायलट घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आपको पायलटिंग आता है कि नहीं। वो इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया कि आपको पायलट घोषित कर दिया जाएगा। आपको पायलटिंग एक ऐसी जॉब है, यू हैव टू अर्न दैट। आपको हार्डवर्क करके पायलट के काबिल बनना है। अगर किसी को आपको घोषित ही करना है, चलो इसके 200 घंटे हो गए,
ये आज से पायलट कहलाएगा। तो ये तो कोई वो चीज़ नहीं है ना। अब इसी के लिए आप 70 लाख 80 लाख रुपए दोगे तो वो कोई फिर आगे जाके क्या, जॉब के लिए हम यहाँ पे। तो हम उसमें थोड़ा काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिर मैं यूएस गया, मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया। फिर मैं एज एन इंस्ट्रक्टर आई यूज टू टीच अदर्स हाउ टू फ्लाई। यूएस की रिक्वायरमेंट यह है कि आपको 1500 घंटे चाहिए टू क्वालिफाई फॉर एयरलाइन जॉब। तो 1500 घंटे तो मेरे हो ही गए थे 2013-14 तक। और उसके बाद मैं अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा था। तो या तो मैं मेरा इंस्ट्रक्टर जॉब छोड़ के एयरलाइन में जाता, और या तो मेरे साथ में मैं उस टाइम पे भी एयरप्लेन सेल्स, एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट, एयरप्लेन पार्ट सेल्स काफ़ी कुछ कर रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो 4-5 चीज़ आसपास भी मैं कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है। यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही है। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। फिर मैं असिस्टेंट चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बना। और फिर जो मेरा स्टूडेंट पास रेशियो है वो हाई रेशियो था। तो मुझे एफए से गोल्ड सील मिला मेरे इंस्ट्रक्टर रेटिंग पे। तो आई एम अ गोल्ड सील एफए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बना। मैं कंपनी रन कर रहा था। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नाउ आई हैव स्काईव्यू एविएशन ऑफ माय ओन कंपनी। द कंपनी हैड स्टार्टेड इन 2002, long ago before majority of you were born। तो कंपनी तो 2002 से ही है। और मैंने एक्वायर किया उसके कुछ टाइम के बाद। तो काफ़ी सारी बात करेंगे। मेरे बारे में तो बस इतना ही है। बाकी चीज़ तो हम फ्लाइट ट्रेनिंग, एयरप्लेन्स, कैसे वहाँ पे जाने की प्रोसीजर है और क्यों वहाँ पे जाना चाहिए और किसके लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो सब कुछ बात करेंगे। सो थैंक यू कैप्टन गुरुजी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट हिम इज, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे यही लगी कि ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। So whenever I do friendship with anyone or whenever I interact with anyone, these are the basic qualities I try to look into those people. Because long run में धोखेबाजी, false claims, ये सारी चीज़ें काम में नहीं आती. In the end, karma, if you all believe in karma, it will hit you back. Either it will hit you from front or from behind. That is something we can discuss later. But yes, I truly believe in karma. जो हम जैसा देंगे यूनिवर्स को, दैट इज व्हाट विल गेट बैक। तो लॉट ऑफ अदर एकेडमीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यूएसए हैव अप्रोच्ड मी कि सर आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए हमारे पास भेजिए, हमारे पास भेजिए। आई हैव बीन सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे स्टूडेंट्स इंडिया में फ्लाइंग करेंगे या डजंट मैटर वो इन द एंड कहाँ जाएंगे, बट थ्रू मी एटलीस्ट वेन एवर आई एम सजेस्टिंग देम एनीथिंग, दे शुड बी ऑन द राइट पाथ। उनको इन दी एंड लॉन्ग रन में बेनिफिट होना चाहिए। नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ऑल ऑफ अस हियर आर वेरी हैप्पी व्हेन वी गेट अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ ट्रूथ। लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट को अगर आप देखोगे, इफ यू रन बिहाइंड इट, देन इन दी एंड आपको ओवरऑल एक्सपेंस आपका डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। आई नो पीपल हु वेंट टू यूएसए, उनका द बजट वाज अराउंड 60 to 70 lakh, but there are very few people who ended up spending 1.5 CR, double than what was expected. Why? Because they were in a rush. Neither did they study their DGC exams, so उनको subject knowledge कुछ नहीं था। They went to USA. वहाँ उनका initial flying training start हो जाता है, but later you have to clear the exams. Now to clear the exams, you have to sit and study. I said, see, studying is something which will take time. It is not unlike your 12th exams or your graduation exams, आप overnight बुक में सब कुछ याद कर लोगे, एग्जाम दे दोगे। इंडियन सिस्टम उस मगअप करने का, बाय हार्ट करने का फॉर्मेट को ज्यादा एनकरेज कर रहा है। दैट अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट व्हेन यू जंप इनटू फ्लाइंग ट्रेनिंग वैसा नहीं रहेगा। यू विल हैव टू नो द सब्जेक्ट्स, यू विल हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ इन द एग्जाम एंड आल्सो इन द फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो जब आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली योर फ्लाइंग परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। दैट अगेन, ही हैज मोर फ्लाइंग एक्सपीरियंस देन एनी ऑफ अस हियर, तो ही कैन स्पीक ऑन दैट टू कि सर आप बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट उसका सब्जेक्ट नॉलेज, लेट्स से अभी एक मिथ चल रहा है क्या
कि 3 सब्जेक्ट्स आप इंडिया में पढ़ो तो आप अब्रॉड जा सकते हो फ्लाइंग ट्रेनिंग करने के लिए, कि one of those 3 subjects are your meteorology, air regulations, navigation. So bare minimum requirement they want to fulfill, and then they want to go to either South Africa or USA to get their flying training done. So you tell me, if someone is studying only these subjects, once they land in the foreign country, how is their journey going to differ from the one who is having more subject knowledge? तो जैसे आपने कहा कि मिथ, तो बहुत सारे मिथ है फ्लाइंग एविएशन वर्ल्ड में आजकल। मिथ ज़्यादा है, रियलिटी कम है, और उसमें दोनों साइड की गलती है, सर्विस प्रोवाइडर की, हमारे जैसे नहीं लेकिन इन जनरल की, और कंज्यूमर की, दोनों। अब उसको मैं इलाबोरेट करूँ तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो पूछते हैं कि 200 घंटे करने में कितना टाइम लगेगा। मैं ये बताऊँ 200 घंटे कितने टाइम में हो जाएंगे? यार 200 घंटे तो मैं आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, आई कैन चैलेंज ऑन द कैमरा 4 months, ये 3 months आई गेट इट डन। हमारे पास इतने प्लान्स है, वेदर परफेक्ट है, इन हाउस मेंटेनेंस है, मैं 3 महीने में करवा दूंगा 200 घंटे। फिर उसके बाद क्या? तो जो एंड गोल के लिए जैसे आपने बात किया कि ये जो भी कुछ हो रहा है आजकल, लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म का वो नहीं है। और जो भी लोग आपको ये 200 घंटे बेच रहे हैं ना कि हाँ, स्पेशली इंडिया में, कि हाँ 1 साल में हो जाता है, तो वो 1 साल कब से 1 साल, वो भी आपको पूछना चाहिए कि मुझे लिख के दो यहाँ पे कि आज चलो अप्रैल एंड ऑलमोस्ट हो जाएगा, चलो मई से स्टार्ट किया तो ये मई से लेके 10 महीने तक, चलो 12 महीने, अगले अप्रैल 31 तक हो जाएगी, मुझे लिख के दो यहाँ पे। अगर कोई आपको लिख के देगा तो ठीक है, तो गारंटी वाला कि अगर नहीं हुआ फॉर वट एवर रीजन तो पूरे पैसे वापस, तो वो कोई नहीं करेगा। इंडिया में 2 से 3 साल हो रहा है, वो आपको बोलेंगे 1 साल, लेकिन वो 1 साल कब से, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो सर ने आपने पूछा कि ये 3 सब्जेक्ट करके जाने का ये क्या स्टोरी है, तो अब जैसे मैं आप सबको खाना खाना तो पसंद ही है। अब एक वो फूड होता है कीटो डाइट। कीटो डाइट के बारे में किसी ने सुना है? क्या होता है? नो कार्ब्स। आपने गलत इंसान को पूछ लिया है, वो पूरा फिटनेस में ही जीता है। अच्छा, हाँ। तो कीटो डाइट मैंने किया था एक बार, सर बहुत डिफिकल्ट है, और स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि या तो रोटी या तो चावल, दोनों में से एक तो हमारे घर में होता ही है। तो अगर वो नहीं किया तो खाना थोड़ा फीका सा लगता है, मजा इनकम्प्लीट लगता है। तो वो सेम चीज है फ्लाइंग के लिए कि 3 सब्जेक्ट करके आप जाओ, वो कहाँ पे किसने ये निकाला कि 3 सब्जेक्ट और यही 3 सब्जेक्ट करके जाओ। तो फ्लाइंग जो मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ कि आप सिर्फ पायलट ना बने, आप एविएटर बने, और उसके लिए आपको पहले तो और कुछ नहीं करना है, आपको इनके वीडियोस देखने हैं बस। सबसे बेस्ट मोटिवेशन तो वहीं से मिलेगा। वो 3 इडियट्स किन लोगों ने देखी है यहाँ पे? देखी है? हाँ, तो उसमें वो एक डायलॉग है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कामयाबी के पीछे काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी, है ना। अब सेम एग्जांपल ले लो, ये खाने की चीज का भी कह रहा है, किसी रेस्टोरेंट से निकलोगे, खुशबू अच्छी आ रही होगी, तो आप अगर कहीं और भी जा रहे हो, बोलो नहीं चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो वही चीज है, अगर ये जो एविएटर बनने वाली चीज मैंने बताई आपको, उसमें ग्राउंड नॉलेज भी आपको करना है, आपको फ्लाइंग नॉलेज भी करना है, ग्राउंड के सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो डोंट एवर रन बिहाइंड 200 घंटे कैसे करेंगे, आपको सिर्फ 200 घंटे करने हैं ना, तो आप आ जाओ 3 महीने का टाइम लेके, मैं खत्म करके भेज दूंगा। पायलट नहीं बनोगे आप, 300 घंटे 300 घंटे कर लो, जितना करो, बहुत प्लेन्स है वहां पे। तो बस यही गोल अभी से लेके यही रखना है। एंड गोल ये है कॉकपिट में जाने के लिए, जैसे आप लोग हो वैसे काफी लोग और पायलट बन रहे हैं, लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड ही रहेगी। तो फिर आपको कैसे वो शाइनिंग पर्सनालिटी बननी है कि कोई आपको हायर करे, ना कि बाकी 400-500 लोग आपके साथ इंटरव्यू में होंगे। तो मिथ तो डेफिनेटली है सर कि 3 सब्जेक्ट करके चले जाओ तो इजी रहेगा।
थोड़ा हेल्प रहता है नो डाउट, लेकिन उसको आप इस तरीके से देखो कि ये जो फाइनल फूड प्रिपरेशन हो रही है, जो खाना खा के और स्मेल करके भी मजा आएगा, उसकी और आप ये डाल रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली मजा तभी आएगा जब आपने फ्लाइंग भी सीखी, उसका टेक्निकल नॉलेज भी लिया। एक एक और चीज उसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में ये है 200 घंटे का मामला है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं, इसीलिए तो काफी बार आप देखते हो कि ये जो इमरजेंसी वगैरह होती है, इमरजेंसी प्रैक्टिसेस जो करवाते हाँ, तो इंडिया में इतना वो नहीं है। और अगेन मैं सबको फिर से कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि हर जगह इंडिया में है। काफी स्कूल्स मैंने खुद इंडिया में सेटअप किए, वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक से हो रहा है, लेकिन फिर भी 2 से 3 साल तो वही भी लगता है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा सिखाते हैं। अब मैं यूएस की स्काईव्यू की पर्टिकुलरली बात करूँ तो इतनी फोकस ट्रेनिंग होती है एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए कि अगर सीधा ही चलाना है जहाज तो 10-15 घंटे की ट्रेनिंग ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एक बंदे की सोलो हुई थी 8 घंटे में, 8 घंटे में सोलो हो गई। मतलब टेक ऑफ करना आ गया, रेडियो कॉल आ गया, इंजन चालू बंद करना आ गया, लैंड करना आ गया, हो गया फाइल। नहीं ना? तो अगर किसी को बस यही सिखाना है तो वो तो हम 10 घंटे में सिखा देंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो ओवरऑल ट्रेनिंग होती है, मोस्टली जो ट्रेनिंग है आपकी वो इसीलिए है कि अगर आपकी गाड़ी सीधी नहीं चली तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको कि बेस्ट आउटकम आए। ये तो गारंटी कहीं पे भी नहीं है कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी छोटा मोटा कुछ नहीं होगा, तो वो तो होगा ही। उसी के लिए तो आपको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, 2 व्हीलर सीखते हो, तो पहले मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ इधर सोसाइटी के अंदर ही थोड़ा चलाओ, और सोसाइटी के बाद फिर जब आप जाओगे मेन रोड पे तब असली शुरुआत होती है। यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, आपको जाने की जगह ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके आप सीखते हो ना। ये तो ये नहीं कि आपने शुरुआत में सोसाइटी में सीखा सोसाइटी में ही रह जाओगे। तो ये जो इंडिया में 200 घंटे वाली बात है ना, यही है। आपको 200 घंटे टेक ऑफ लैंड, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वापस आओ। काफी लोगों की 200 घंटे जो हो जाते हैं, मुश्किल से वो 3-4 एयरपोर्ट पे गए होते हैं क्रॉस कंट्री के लिए, ये वो है। अभी मैं किसी को कह रहा था, हमारे यहाँ पे आपके सोलो होने से पहले 2-3 एयरपोर्ट तो आपने ऐसे ही विजिट कर लिए होंगे। आपकी कमर्शियल खत्म होते होते तो 50 से 70 एयरपोर्ट तक आप जा चुके होंगे। उसका मतलब ये है कि आपने इतने सारे डिफरेंट रनवेज पे फ्लाइंग किया, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में फ्लाइंग किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस आपने किया। फास्ट फॉरवर्ड टू द डे यू आर सिटिंग इन सिमुलेटर चेक फॉर एयरलाइन, तब जाके आपको ये सब चीज कुल मिला के वो उसका अप्रिसिएशन होगा कि हाँ हमने तो सीखा, यही नहीं सीखा कि बस सिर्फ बेगमपेट एयरपोर्ट पे कैसे लैंड करना है यही सिखाओ, ये नहीं है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो ये कि लैंडिंग तो लैंडिंग होता है। जैसे आपको एयर इंडिया में अगर वाइट बॉडी में जॉब मिली, एक दिन आप सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो, एक दिन आप साउथ कोरिया जा रहे हो, एक दिन आप कहीं जा रहे हो, तो ये थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ वो एक ही एयरपोर्ट की ट्रेनिंग दी। तो हम आपको टेक्निक्स सिखाते हैं, हम आपको वो स्किल्स देते हैं। तो हम वही जो चतुर का वो डायलॉग था 3 इडियट्स का, काबिल बनो, हम आपको काबिल बनाते हैं कि आपको फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कैप्टन गुरु जो ये जो पढ़ाते ये नहीं है कि आपको बस ये ऑक्सफोर्ड की क्वेश्चन बैंक ही पास होगी या आर के बाली का ही होगा। ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एनीवेयर, तो वो आपका गोल होना चाहिए। that's and only where you'll be able to get airline job। गोल तो वही है ना। ये तो नहीं है कि चलो बेटा या बेटी पायलट बन गई या बच्चा रिश्ता मिल जाएगा, घर बस जाएगा, तो उसके लिए तो आजा मैं आपको 200 घंटे करके भिजवा दूंगा, लेकिन the end goal is to get the job। तो सर मुझे काफी सारी चीज से बहुत कुछ है जहाँ पे आपको मुझे रोकना ही रोक देना, वरना ये लोग सुबह तक घर नहीं जा पाए। Let me check. Yes, hi Pankaj, can you see me? Yes, sir, I can see you. All right, मैं ऑडियंस को इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आप घबरा जाओगे, ठीक है? बट अगेन या तो ट्रीट ऑल ऑफ देम एज योर फ्रेंड्स। एंड आप अभी साउथ अफ्रीका में हो, तो वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर एग्जैक्टली आर यू राइट नाउ? I'm in Cape Town near Brackenfell area.
ओके, तो कितना महीने हो गए आपको जाके? 8 months. 8 मंथ्स हो गए आपको? अरे बस वाह। अब तो आने की तैयारी हो रही होगी। ऐसा लग रहा है आप रिसेंटली गए हो। Yes. So tell me, how is your experience so far, apart from the thrilling places you have been roaming around? तो साउथ अफ्रीका में फ्लाइंग को लेकर है कि इट इज़ डिवाइडेड इन द पार्ट्स, लाइक फर्स्ट यू गेट सोलो, देन यू गेट योर पीपल लाइसेंस, then you get your night rating, then you prepare for your exam, then after that R building, and then you get IF and then CPL at last. So तो मैं अपना पूरा स्टोरी बताऊँ सर, जो जो हुआ है मुझे 8 months में. Yes, yes, please go ahead. Okay, when I landed here, I got my intro flight in 1 week. I performed well in that, and then I got my solo in 3 months. Before solo, you get with different exercises. वो एक्सरसाइजेस पूरा होने के बाद तो सर्किट्स कितने में आवर्स लगे आपको सोलो मिलने के लिए? मुझे सोलो मिलने के लिए 17.5 में मुझे सोलो मिला था. ओके, वेरी डिसेंट, क्योंकि इन इंडिया जनरली 25 घंटे लगते हैं और सोलो मिलने के लिए, समवेयर अराउंड 20 आवर्स. बट कैन यू टेल मी व्हाई इट टुक 3 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग टू गेट द सोलो? हाँ, तो इधर ये है कि आपको पेपर पे एयरक्राफ्ट ज़्यादा दिखाए जाते हैं. दे सो यू 25 एयरक्राफ्ट, बट वर्किंग इज अराउंड लाइक 5 to 7. और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तो है 200+. तो आपकी बुकिंग थोड़ी कम लगती है. आप अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पुश मिलेगा, नहीं कर रहे हो तो और आप डिग्रेड होते जाओगे. तो मुझे भी मिला था एक 1 वीक का पुश मिला था मुझे. सर्किट्स फ्लाइट में डेली फ्लाइंग लगाए थे, तो उसमें मेरा जो स्किल्स था वो इम्प्रूव हुआ और मुझे सोलो 3 months के में मिल गया था. करेक्ट, तो यू मीन टू से पहले जितने एयरक्राफ्ट दिखाए थे और ऑन हम्म. ग्राउंड ऑपरेशनल एरोप्लेन्स सेम नहीं है, एंड Same. दैट इज डिस्पाइट you being in one of the famous flying schools in South Africa. Yeah. तो फेमस फ्लाइंग स्कूल्स की ही ये हालत है, तो बाकी फ्लाइट स्कूल्स का हम अंदाजा लगा सकते हैं. वही होता है, सोशल मीडिया पिक्चर्स हियर एंड देयर थोड़े बहुत आपके फ्रेंड्स डाल देते हैं, आप वो देखकर जब जाते हो, लेकिन अनलेस अंटिल यू सफर बाय योरसेल्फ आपको समझ नहीं आता है. चाहे कैप्टन व्यास आज इधर आपको जितना भी समझा दे, चाहे मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा, वो दिक्कत आएगी, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इन दी एंड आप लोगों को करनी तो अपनी खुद की ही है. You will take your own decision and you will suffer yourself. But we have almost half of my students, they keep calling me back again and saying कि सर आपने जब बोला था सुन लेना चाहिए था, we would have been much safer and थोड़ा जल्दी हो जाती चीज़ें, और we would have not wasted so much of money. तो ये चीज़ हर किसी के साथ होती है. Even when I was starting my flying training, lot of people gave me advice, but मैंने देखा अच्छा यहाँ अच्छा दिख रहा है, ओके, एक दो बंदों ने बोल दिया कि सब ठीक है आ जाओ करके, क्योंकि शायद उनकी फ्लाइंग अच्छी हो रही होगी वहां पर, लेकिन हमको तो ओवरऑल देखना है ना. लेट्स से देयर आर 100 पीपल इन दैट फ्लाइंग स्कूल, आउट ऑफ 100 एटलीस्ट मोर देन 50% अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए. ओके, सो इफ यू जस्ट आस्क 1 or 2 people, आई गेस दिस माइट हैव ऑलरेडी हैपेंड टू यू ड्यूरिंग योर ग्राउंड क्लासेस ऑल्सो. आपने एक या दो इंसान को पूछा कि वहाँ कैसा चल रहा है, आप चले गए, आपको जाने के बाद पता चला कि थिंग्स वर डिफरेंट, फिर आप मुझे मैसेज करते हो कि सर नेविगेशन पास करवा दो. ओके, तो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग. सो दैट इज द व्हाई वी आर हियर. आवर मेन एजेंडा इज आपको ये सब हम दिखाना चाहते थे. इट डजंट मैटर वेयर यू एनरोल फॉर योर फ्लाइंग ट्रेनिंग, एटलीस्ट हम आपको एक ट्रू गाइडेंस दे पा रहे हैं. डिड वी टीच यू समथिंग न्यू टुडे? दैट इज व्हाट वी वांट. तो yes, let's continue the conversation with Pankaj once. Yes, Pankaj. हाँ, तो सोलो के बाद पीपल का भी कुछ एक्सरसाइजेस होता है. उसके बाद हमें GF का आर्ट्स करना होता है, उसके बाद NAV करना होता है. तो मैं अभी NAV पे हूँ. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एज ए चूजिंग स्कूल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो उन लोग कॉस्ट जो ब्रोचर में जो डालते हैं, लिखते हैं, वो चीप होता है सिर्फ पेपर पे, ना कि रियल लाइफ में. और बहुत कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं जो कि आपको पता नहीं चलता है. Mute it again. हाँ, तो जैसे कि पंकज ने बोला, whatever the fee brochure, most of the times you get to see, it's only on paper, and reality में once you land there,
the kind of expenses you pay, the kind of fee you pay is different. आपको 30-40% ज़्यादा फीस भरनी पड़ जाती है. Initially, his fee brochure said 45 lakh rupees, including everything, I guess, Yes, sir. including the accommodation, everything. And right now, when he calculates, as the things are going, as the time is ticking, he's expecting it to go up to 60 lakh rupees. So Pankaj is one of very sharp students. He's active. पढ़ाई में थोड़ा स्लो है, even he agrees. But otherwise, चीजें सीखने में, समझने में, लोगों को जज करने में, he's very good. तो जब पंकज खुद मुझे बोला कि सर लग रहा है 60 lakhs तो हिट करेगा ही, इंक्लूडिंग द अकोमोडेशन, बाकी सारे एक्सपेंसेस. दो आई डिडंट हैव टू आस्क एनी अदर पीपल. मुझे समझ में आ गया ओवरऑल वहां पर क्या एक्सपेंस चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग साउथ अफ्रीका इज बैड, लेकिन जो आपको दिखाकर सेल कर रहे हैं, एटलीस्ट डोंट फॉल फॉर दैट. अगर वो लोग 45 lakhs बोल रहे हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग एनी मोर. यू हैव द लाइव एग्जाम्पल विथ अस. तो 60 lakhs is what you will end up paying by the time you include your accommodation, flying training, the delays, the check ride fees, ये सारी चीजें मिला के 60 lakhs वहाँ खर्चा होना है आपको. When you come back to India, you have to convert your license, you have to apply for an Indian license. उसका आपको roughly 3 to 4 lakh rupees लगना ही लगना है. तो 64 to 65 lakhs आपका overall cost of training in South Africa and then coming back to India, getting your Indian license. All of this you have to pay. This is after being compromised with your training. After considering all the delays and everything, you are paying 60 lakhs for the delays. Why should we pay more and also suffer? It is total foolishness. अभी पंकज को ये बात पता नहीं थी. Whenever we start inquiring, जरूरी नहीं है कि हर बार हमको right information ही मिले. Okay, वो misinformation में पंकज is one of them. Pankaj, 2 minutes, okay? Let me mention something very quickly. So, जैसे पंकज ने बताया 3 महीने लग रहे थे 16 में. हमारे यहाँ पे तो जो राजवीर सिंह से आपकी रिसेंटली बात हुई, 3 महीने में तो PPL हो गया था. काफी लोगों का ऑन एवरेज 3-4 महीने में तो PPL हो जाता है. सोलो 3 महीने, दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज कि कितने आवर्स थे. तो वो 17.5. सो टाइम इज मनी एट दैट पॉइंट. और 45 lakhs तो मतलब मैं तो उस पर कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहता कहीं पे. इट्स इम्पॉसिबल एनीवेयर. अगर आपका चाचा की स्कूल भी है तो भी 45 नहीं, क्योंकि उससे तो ज्यादा स्कूल का खर्चा ही होता है. तो फिर 45 lakhs बोल के प्रोग्राम बेचने का इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. और ओवरऑल जैसे बताया कि कुछ दिखाया गया था, कुछ था. अब ये ना, इससे क्या होता है, जैसे 45 lakhs ले लो या नंबर ऑफ एयरप्लेन्स जो मिस रिप्रेजेंट था, उसका पेनल्टी वो स्कूल को नहीं जाता. उसका पेनल्टी जाता है जेन्युइन स्कूल को, हमारे जैसे. कि अब हमारे पास कोई आता है, अभी रिसेंटली किसी ने पूछा कि हाउ मेनी एयरप्लेन्स डू यू हैव, ऐसे हमारे पास 23 एयरप्लेन्स है. तो उसका फॉलोअप क्वेश्चन था कि अच्छा ऑपरेशनल एयरप्लेन्स कितने हैं. तो मैंने बोला मैं अगर जितने ऑपरेशनल है वही आपको बताऊंगा ना. मैं वैसे तो मेरे पास काफी एयरप्लेन्स है, पर ऑपरेशनल जो है डे टू डे यूज होता है 23. तो ये होता है जो पंकज बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको बताते कुछ है, होता कुछ है, आप जाते हो वहाँ पे फिर कुछ होता है. तो अभी और बात करेंगे उस पर, लेकिन ठीक है. Again, जो पंकज ने the 3 months time period which he mentioned, अगर आप इंडिया में देखो तो फर्स्ट सोलो मिलने के लिए लोगों को 6 months भी लग जाते हैं. It is very common in India where it takes around 4 to 6 months to get your first solo, which means you're hardly flying 2 hours, 3 hours a month. Okay, जब जाके आपको 6 महीने में you will fly around 20 hours and you'll get your first solo. So that is the ground reality of flying training in India and South Africa. For the same reason, USA has become very popular for its infrastructure, for its quality of training. Again, I understand cost आपको pay करना पड़ रहा है. It is slightly expensive than India and South Africa. But again, आप जो 50 to 60 lakhs India में या South Africa में pay कर रहे हो, you are paying it after getting compromised. After going through all the struggles of, delays in your training, misinformation, improper training, ये सारी चीजें add करने के बाद you are paying so much of money. So you are not. Two more things. Sorry to interrupt, because you're touching the right points. This is about the awareness.
आपके आपकी रिकमेंडेशन को छोड़ दो, मेरी फ्लाइट स्कूल को छोड़ दो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एवरीवन डिजर्व्स देम। अब जैसे आपने बोला कि आपकी ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज होके, ठीक है, अब आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, आपने रोटी सब्जी ऑर्डर किया, अगर रोटी जली हुई आई है तो आप क्या करते हो? तो बोलते हैं कि भाई ले जाओ, मुझे प्रॉपर रोटी दो, ठीक है। तो वो तो हो गई 50-100 रुपए की बात। वी टॉकिंग अबाउट 50 लाख, 60 लाख, 70 लैक्स। तो ऑफ कोर्स आपको तो रॉयल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हमारे स्टाफ का ये है वहां पे स्काई व्यू में कि इट द सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर। तो जैसे मुझे तो पता भी नहीं था सर की, मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मुझे यहाँ तक आते आते सर ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है to associate the two names together. And I proudly challenge anyone and everyone कि आप जाके हमारे स्टूडेंट्स को पूछो, करंट स्टूडेंट्स जो है, पास्ट स्टूडेंट्स है, तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है, जैसे वो सिंपल, आप खाना खाने जाते हो, रोटी जली हुई आए, हियर वी टॉकिंग अबाउट 70 लैक्स। काफी लोगों के पूरे लाइफ की वो सेविंग्स होती है। तो ऑफ कोर्स यू शुड गेट दैट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। और एक और चीज, देन आई लेट यू कंटिन्यू। किसी ने इंडिया में फ्लाइंग के बारे में डोलो का नाम सुना है? दोनों। कोई नहीं। डोलो का Dolo is the medicine, right? हाँ, हाँ, वो क्या क्या बोला? Dolo is the medicine. डोलो, डोलो इज अ मेडिसिन, दैट्स ट्रू। फ्लाइंग के कंपैरिजन में डोलो का नाम किसी ने सुना है? तो ये, हाँ, तो डोलो ये, जैसे सर ने काफी बार बोला, सोलो, सोलो होता है। सोलो का मतलब क्या है? सोलो क्या होता है? सिंगल पर्सन इन द एयरप्लेन, सोल ऑक्यूपेंट ऑफ द कंट्रोल्स, सिंगल पर्सन। तो वो हो गया सोलो। अब जैसे पंकज ने बताया कि 17 आवर्स में सोलो हुआ, विच इज वेरी गुड नंबर, बट द टाइम फ्रेम 3 मंथ्स इज नॉट गुड। हमारे यहाँ पे 8 घंटे में हो जाता है सोलो, 15 घंटे में, 17 घंटे में। सोलो जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअल सोलो, कि आप जहाँ पे अकेले प्लेन में जाके यू डू द फर्स्ट सोलो इज आप 3 टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स करते हो। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे सोलो का। आप देखोगे हमारे सोशल मीडिया में, skyview.aviation, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे वो देख लेना। इनके जितना अच्छा सोशल मीडिया नहीं है हमारा, बट you'll still see some I learned from his social media. तो those are real solo। जब कोई यूएस में स्काईवी में बोलता है कि सोलो हुआ, तो उसका मतलब होता है कि वो बंदा या बंदी अकेले एयरप्लेन को लेके टेक ऑफ लैंडिंग किया। ऑल द सोलोज आर रियल सोलो। अब इंडिया में क्या होता है? अगेन आई गेव दिस डिस्क्लेमर 2 टाइम्स बिफोर, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हर इंडिया के स्कूल में भी ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्कूल में ये होता है कि वो आपको फिर इंस्ट्रक्टर बोल देता है कि चलो भाई, आज से आप सोलो लॉक करना शुरू कर दो। ऑन पेपर आप सोलो लिखते हो, प्लेन में सोलो नहीं होते हैं। तो हमने उसको नाम दिया है डोलो, डुअल सोलो। क्योंकि यहाँ पे सिखाने वाले को ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अकेले एयरप्लेन लेके जाओगे, सेफली आओगे। हमारे यहाँ पे तो वीडियो भी आप देखोगे कि बंदा अकेले गया, वापिस आया, प्रूफ है। इसीलिए इंडिया में वो रिकॉर्डिंग, मुझे तो लगता है इसीलिए बंद करी होगी, कि अगर रिकॉर्डिंग जाएगी तो पता चल जाएगा कि अरे इसमें तो 2 लोग हैं, तो इसको सोलो क्यों बोलते हैं। तो ये जो आप सोलो की कह रहे थे, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट, प्लीज कंटिन्यू। So the thing which he mentioned very recently, around 4 months ago, there was a proposal by DGCA that all the aircrafts in India, they need to have the camera on board in the cockpit. So every training sortie, every flying sortie will be recorded in that camera and preserved for a certain period of time. So they submitted that proposal and it hasn't come into existence yet. That is where, whereas in abroad, you're allowed to carry the cameras on board in the cockpit, so everything is recorded. That freedom of recording is there. इसी एक रीजन की वजह से काफी लोग अब्रॉड प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट
ट्रेनिंग हो या ना हो, कॉकपिट में आपको रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका फायदा क्या होता है कि आप जब अकेले जाते हो प्लेन में, जो आपको करना है वो आप करते हो, जब जो सिलेबस में है, एंड ऑफ द डे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही वो सामने दिखता है. ये सब एक्चुअली आप करते हो. और मैं तो कहता हूँ कि आपके यूएस में ट्रेनिंग खत्म होते होते एक आधी चीज तो होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ओ बाप रे, बट उसमें वो हम आपको ट्रेन करते हैं उसके लिए, और जो उसमें से आप फिर जो पायलट बन के निकलते हो, दी एविएटर, जो हम काबिल बनाते हैं, Correct. तो उसके बाद जब आप एयरलाइन इंटरव्यू में जाओगे या कोई भी इंटरव्यू में, तो वो दिखेगा आप में. वर्सेस अ गाय हु हैज जस्ट डन 200 आवर्स विद अ लॉट ऑफ डोलोस नॉट सोलोस, तो वो दिख जाता है. And this thing, the Dolo thing which is talking about, lot of my very close friends, उनके साथ भी ये हुआ. It's not their fault. The instructors weren't able to put enough efforts in training them. अभी training progress हो रहा है. Target is to finish 200 hours. Somehow they have to push the student forward. Otherwise academy का bad name आ जाता है कि इतने time से student क्यों बैठा हुआ है. Why it took 3 years or 4 years for the student. So to skip the bad name, what they do, they write it as solo, but in reality the student is flying along with the instructor. So when many of my close friends have done that, they did not want to do it. No student want to fly dual and log it as solo. The academy keeps pushing them to do such things. तो ये सारी चीजें अवॉइड करना है हमको. How to avoid it? By taking good decisions, by taking informed decisions. We are trying to spread that awareness from the day one. That was my whole agenda when I started my flying training. As soon as I entered in my flying academy, I regretted the decision. Okay, कह रहे बाप रे, यहाँ तो अब फीस भी भर दी, नॉन रिफंडेबल है या वॉट एवर. अगर मैं रिफंड पूछने भी जाऊँ तो दैट विल बी अनदर बिग वॉर विद देम. Okay, somehow they'll convince me to stay in that academy. सर एक और चीज मेंशन करूँ, आई एम सॉरी आई के पेशर रखते हैं, लेकिन आप जो ये चीज बात कर रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये तब पता चलती है जब इट्स टू लेट. जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आपने बात करी थी, कैप्टन राजवीर, yes. राजवीर, तो राजवीर के साथ ये हुआ फर्स्ट हैंड. और ओवर लास्ट 2 to 3 years हमारी स्कूल में बाकी की स्कूल से करीबन 2 to 3 डजन स्टूडेंट्स थे. मतलब 24 जो जो ट्रांसफर करके आए हमारे यहाँ पे. राजवीर इज वन ऑफ देम. तो क्या हुआ था, वो कोई स्कूल में गया था, अब नाम तो हम नहीं लेंगे, जैसे पंकज बात कर रहे हैं या मैं बात कर, नाम लेके क्या करना है. तो वो वहां पे गए थे और पहुंचने के दूसरे ही दिन, अब आप ये सोचो कि आपने यूएस के लिए एनरोलमेंट किया, वीजा अप्लाई किया, पेरेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए, आपने, मतलब हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो मतलब यूएस जाना, वो भी पायलट बनना है, बहुत बड़ी चीज है. तो घर में 2-3 दिन तो उसका सेलिब्रेशन, चाहे किसी की शादी हो, ऐसा लगता है. Correct. उसके बाद आप यूएस गए, आप एकदम एक्साइटेड हो, और आप वहां पे गए, फिर आपको लगा कि अबे ये क्या हो गया, स्कैम हो गया. ये क्या हुआ. हाँ, और अनजाने देश में. ऑनेस्टली बताना, आपको भी ऐसे ही लगा क्या जाने के बाद? ऑनेस्टली सर, मैं तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट में मैं फंस चुका हूँ. जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोग साइन करवाए हैं, ऐसे लॉयर से बनवाए हैं कि आप अगर एक बार आ चुके हो इस फ्लाइंग स्कूल में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, उसके बाद आप निकल ही नहीं सकते हो. इवन बिल्कुल. तो आफ्टर ये चीज इवन अगर आपको निकलना है स्कूल से तो द फी यू पे दे कट डिटेक्ट 33% ऑफ योर होल फीस. तो आप तो लॉस में ही रहोगे. तो आप खुद डिसीजन लोगे कि नहीं, मुझे ये स्कूल नहीं छोड़ना है, मुझे इधर ही कंप्लीट करके ही जाना है. हैदराबाद से लोकल ही है यहाँ पे, Yes. कि कोई बाहर है, सब हैदराबाद लोकल. एनीवन आउट ऑफ हैदराबाद हियर? हाँ, मतलब तेलुगु स्टेट से. अच्छा, साउथ में. अगर मानो कि आपको कल कोलकाता जाना पड़ा, अलग स्टेट में, कंप्लीटली डिफरेंट, और फिर वहां पे जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया, हॉस्टल में ये है वो है, आप इंडिया में ही हो, आप हिंदी में बात करके भी किसी से वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो एक हो जाता है कि ये मेरी जगह नहीं है. अगर हैदराबाद में कुछ हुआ तो आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, अरे ऐसे कैसे भाई, मेरे पैसे वापस दे.
कोलकाता में वो कॉन्फिडेंस थोड़ा ना ठंडा हो जाता है, मतलब कोई भी जगह, कोलकाता तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ तो ये चीज अब आप यहाँ देखो, जैसे अफ्रीका है भाई साहब का है, और जो मैं बात कर रहा हूँ राजवीर की, तो वहां पे आया, अब वहां पे तो काफी स्कूल इसका मिसयूज करते हैं, तो राजवीर ने कुछ $8,000 का पेमेंट किया था वहां पे दूसरी स्कूल में। अब इंडियन करेंसी में बात बताइए। इंडियन करेंसी अब देखो 7 लाख तो मान लो उसको, 7 लाख। तो 7 लाख का पेमेंट किया था उसने वहां पे। और फिर उसने बोला, दूसरे दिन जाके वो शॉक में आ गया कि ये क्या हो गया। फिर उसने बोला वहां पे कि नहीं भाई, मुझे नहीं यहाँ पे करना, मुझे अब पैसे वापस दो, मैं वापस इंडिया जाऊंगा। तो स्कूल वाले ने फिर द रियलिटी केम अप, तो बोले कि नहीं नहीं, ये तो नॉन रिफंडेबल है, आपको इंडिया जाना है आप जा सकते हो, पैसे तो आपके हमने खा लिए। तो मतलब प्यार से बोला होगा, खा लिए ऐसा तो नहीं, मतलब तो वही था। हाँ। तो फिर राजवीर ने, एक हमारे कॉमन फ्रेंड है उनसे बात करी, तो उन्होंने तो उनको, डोंट माइंड मी सेइंग, उनको गाली देके बोला कि अबे तुझे यूएस जाना था, तू स्काई भी चले जाता, अपनी घर की फ्लाइट स्कूल है। तो राजवीर ने बोला कि हाँ वो यहाँ से नजदीक भी है। हाँ। फिर राजवीर स्कूल देखने आया। Again, लॉन्ग स्टोरी before he visited your academy, he messaged me on Instagram, अच्छा। called me हाँ कि ऐसे स्काई भी मुझे पता चला है कि कैलिफोर्निया में he ended up joining in a wrong school and he wants to get transferred. So before visiting, he asked me for an opinion. So I said कि so far everything looked good to me. Okay, I have spoken to the owner a couple of times. काफी genuine लगा है मुझे सब कुछ चीज। तो आप भी जाओ, इन पर्सन विजिट करो। आई टोल्ड हिम कि विजिट करके मुझे भी बताना हाँ कि क्या सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू गेट एनरोल्ड विद स्काईवी एविएशन। तो विद इन दैट वीक ही वेंट टू स्काईवी, से बात की, फ्लाइंग स्कूल देखा, ही जॉइन द फ्लाइट स्कूल। ओके, आफ्टर 2 months ही डिड नॉट से टू मी कि वो ज्वाइन कर चुका है करके। आफ्टर 2 months ही कॉल्ड मी अप एंड सेइंग कि पाजी आपकी एडवाइस काफी अच्छी सही साबित हुई। ही हैज फिनिश्ड हिज पीपीएल, सो अराउंड रफली अराउंड 2.5 months इट टुक फॉर हिम। हाँ, 3 महीने के अंदर हो। हाँ, अंडर 3 months he got his PPL done एंड देन लेटर ऑन अभी वो ना CPL कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूजुअली अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके फ्लाइंग को लेके इन यूएसए, when I say consistent, you're good with your subject knowledge, you're able to clear the FAA written exams, and then flying भी आप वो flow में कर रहे हो, तो 8 months is a good amount of time considering weather, ये maintenance, all the issues combined. 8 to 10 months में आपकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, एंड काफी लोगों की हो चुकी है। मेन लैग कहाँ आता है? जब एग्जाम्स देने की बारी आती है, बिकॉज फ्लाइंग ट्रेनिंग इज समथिंग प्रैक्टिकल। वी विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। It hardly takes just few hours to book your slot, get you for the flight, and teach you the maneuvers and everything. So flying training it can be taken at a good pace, but मेन दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ अटक जाते हो आप लोग? अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो रिटन एग्जाम आपके क्लियर नहीं होंगे वहां पर। तो अगेन आई हैड अ फ्रेंड हु स्टार्टेड डूइंग फ्लाइंग ट्रेनिंग विद मी इन इंडिया। फिर बाद में वो यूएसए गया, उसका यूएस का वीज़ा लग गया। वैसे तो अप्लाई मैंने भी किया था, मेरा नहीं लगा, तो उसका भी वीज़ा लग गया, वो चले गया यूएसए। जाने के 1 महीने के बाद बोला भाई अच्छा हुआ तेरा वीज़ा नहीं लगा, क्योंकि द एकेडमी ही एनरोल्ड इन, उसको वहां जाके पता चला कि द कॉस्ट विच वी प्लान्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट विच दे आर अबाउट टू पे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दे टोल्ड हिम अराउंड 60 lakhs, दिस इज 2019। 2019 में दे टोल्ड हिम 60 लाख रुपीस। अगेन वो F1 वीजा कैटेगरी की एकेडमी है। There's a difference F1 and M1 and a lot of you might have that question in your head। अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो he joined that academy, recently उसका CPL खत्म हुआ है। ओके, why? क्योंकि 60 lakhs तो कोट किया था, but it took him 90 lakhs to finish his CPL। अब वो एक्स्ट्रा जो 30 lakhs थे, 30 lakhs is again a big amount for a middle class। overnight तो 30 lakhs हम जमा नहीं कर सकते। तो somehow their parents, उसने फ्लाइंग में ब्रेक लिया, उसके पेरेंट्स ने अरेंज किया, फिर जब जाके वो एक्स्ट्रा 30 lakhs अरेंज हुए, धीरे 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 उसने अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करी। तो F1 M1 जो ये आप लोग को काफी सारे कंफ्यूजन है, विल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन। ओके, ऑल आई वाज ट्राइंग टू से इज शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स अगर आप ढूंढोगे तो आप इनडायरेक्टली, और सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी हो जाएगी आपकी। जो सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टकट ढूंढता है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्ग जर्नी हो जाएगी। दैट इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली गारंटी। ऐसे लेम जोक्स मैं बीच बीच में करता रहूंगा,
तो नहीं है, सिखाएं जरूरी तभी है। आप मैं वो राजवीर वाली बात खत्म कर दूं, यस तो उसके वो 7 लाख स्कूल ने खा लिए, मतलब ले लिए थे। करेक्ट तो उसके बाद उन्होंने मांगा, मना किया। लकीली उसका कोई यूएस में था जो लीगल फील्ड में है। तो फिर उसने फोन पे बात करी, कुछ कायदे कानून समझाए स्कूल वाले को कि ऐसे आप पैसे तो नहीं ले सकते। अगर आप नहीं वापस दोगे तो फिर हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में। फिर उसको पूरे दे दिए पैसे वापस, लेकिन उसको वो करने के लिए इतना वो एफर्ट करना पड़ा, और उसका लकीली कोई था लीगल सिस्टम में वहां पे, तो उसका हो पाया। वरना लोग पंकज भाई जैसे वहां से होते हैं। और ये है ना, ये जो हम जितना अवेयरनेस भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ना कोई तो ये सुनने में से, क्राउड में से भी हो जाएगा कि नहीं नहीं सर, वो 200 घंटे कह रहे हैं मुझे, मैं वहीं जाऊँ। वो फिक्स प्राइस कह रहे हैं, मैं वहीं जाऊंगा। और अगले साल वो जब हम ये करेंगे तो पंकज भाई की जगह वो बैठे होंगे। तो अगेन इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। जब वो स्टेज में होते हैं ना, वेयर दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि फ्लाइंग स्टार्ट करनी है, तो वहां पर कितना भी आप उनको ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो या गाइडेंस दे दो, जो भी अट्रैक्टिव ऑफर दिखता है लास्ट में, हाँ, दे एंड अप चूजिंग दैट। अनफॉर्चुनेटली। You have been there, I have been there at the यस, same spot. एब्सोल्युटली। We have done the mistakes, we have lost couple of lakhs. Aviation में कुछ भी छोटे अमाउंट में नहीं होता है। If you lose money, it will be in lakhs of rupees only. तो पंकज डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, मैं भी था। मैंने भी पैसे गंवाए, ठीक है। ऑलराइट। So there are few things regarding the, let's say we are talking about the flying training in USA. तो साउथ अफ्रीका का तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो पंकज, अभी आपको क्या लग रहा है और कितना टाइम लग सकता है आपको आपकी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए? कैन यू हाँ, आप म्यूट पे हो पंकज। Maybe approx 8 to 9 month more. और तो ऑलरेडी आपको कितने मंथ्स हो गए जाके आपको वहां पर? 8. 8 महीने हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि 9 to 10 months और लग जाएंगे आपको, मतलब 1.5 year इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम फ्रेम Yes. कि आपके हिसाब से 1.5 year लगेगा? थोड़ा और ज्यादा भी लग सकता है, कम तो नहीं लगेगा, ठीक है। 1.5 year व्हाट ही हैज मेंशन्ड, वो तो लगना ही लगना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी, लेकिन अज्यूम कि 2 साल तक इस सीक्वेंस में अगेन प्रॉब्लम इज नॉट विद हिम, द सिस्टम इज लाइक दैट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू मेक श्योर जो दूसरों ने मिस्टेक्स करी है एटलीस्ट वो तो ना करें हम। यू आर अलाउड टू मेक न्यू मिस्टेक्स, बट एटलीस्ट डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन। तो नाउ if you want to have an idea of how much will it cost you for flying training in US, we thought कि founder is here, will calculate, open करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे A to Z। आपके दिमाग में जो जो एक्सपेंस आ रहा है, it could be आपको घूमना है, could be आपके अकोमोडेशन पे खर्चा है, आपके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो रहे हैं, each and everything will add, क्योंकि रियलिस्टिक फिगर पेरेंट्स को भी तो देना है कि कितना खर्चा लग रहा है, ये हर चीज़ का पैसा तो वो लोग ही देंगे। So let's do that calculation once. Yes, I hope the screen is visible. So while I'm doing the calculation, आपके दिमाग में भी कोई भी expense आता है कि this is something I have missed out, बताना, हम ऐड करते हैं। Okay, let's see final real figure क्या होता है। Okay, this is something after adding the miscellaneous expenses also. So let's start with so this is the cost breakdown by Skyview. लेकिन इससे पहले उनका दूसरा पैकेज था 57,000 or something, उसका हम अलग से डिस्कस करेंगे, but the revised fees is right now $60,000 for the entire CPO. So talking about, you can see
अगेन गाइस, आप लोगों के दिमाग में तो 4-5 क्वेश्चंस होंगे। हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पहले लिख चुके थे। ये सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। We thought of exhausting him today with the questions. बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर इट, इसलिए मैंने बोला भाई कॉफी पिलाओ। So starting with the course structure here, you can see there are okay. Yes, guys, I'm audible to you. Yes, sir. You All right, are. perfect. So if you look at here, we have 4 stages for your entire CPL. Stage 1, your PPL. After getting your PPL license, you will do something called as instrument rating. Then you have your commercial single engine rating. क्योंकि 185 hours as per Indian norms you have to do on a single engine. वैसे तो सब कुछ मल्टी इंजन पे भी कर सकते हो, बट दैट बिकम्स टू एक्सपेंसिव। तो एयरलाइन रिक्वायरमेंट जो इंडियन एयरलाइंस है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 185 hours you can do on single engine, but 15 hours we have to do it on multi engine. But airline needs at least 10 to 15 hours of multi engine experience. So 185 hours you will be doing commercial single and then you will be doing multi engine flying as well. So 4 stages में आपका USA में flying training होगा. Let's say you begin with your initial flying. So roughly how many hours do they have to do to get a PPL in US? To get minimum requirement is 50 hours. 50 hours. So first 50 hours. 40 hours. Okay. If we go to the next page, Yes. there is a breakdown also. A little Okay. bit PPL. further down. Right there. One more. That one. Yeah. So ये जो है, these are the hours. This is based on the minimum hours. Okay. तो ये इनका PPL कोर्स के लिए. This is the breakdown for your private pilot training. So you can see here आप on an average 40 hours आपको minimum करना ही करना है. हाँ, वो तो minimum करना ही है. Correct. लेकिन the difference between Skyview और बाकी स्कूल, स्पेशली जो पंकज बता रहे थे, सो हम बोलते हैं पहले से ही कि जो कोर्स डिटेल्स टोटल है उस पे आपको 10-15% बफर लेके ही चलना है. उसका रीजन ये है कि सबकी लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटी, पेस अलग अलग होती है. काफी लोगों ने 40 आवर्स में भी पीपीएल किया है, बट ये आपका सबसे पहला लाइसेंस है, थोड़े घंटे इसमें ऊपर हो ही जाते हैं. तो डिफरेंट कहीं भी जाओगे हो ही जाएंगे. अब जैसे पंकज ने वहां जाके पता किया कि अच्छा ये तो कुछ और ही निकला. मेरा यह है कि मैं पहले से ही सबको डे 1 से सबको अवेयर करता हूँ कि आपको 10-15% तो बफर होना ही होना है. अगर आपने कम टाइम में खत्म कर लिया तो वो आपका बोनस हो गया, वो पैसे आप वापिस आके टाइप राइटिंग में यूज कर लो. लेकिन आपको बफर के लिए तो उतना अमाउंट रखना ही रखना है. तो जी सर, कंटिन्यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई मेंशन दैट, स्पेशली जो पंकज ने बताया कि सर तो हमें 15% तो बफर रखना है. Also, can you open the calculator? So keep the calculator ready. You have minimum of 40 hours here. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ground prep you have a dual flying and then you have overall 40 कर रहे हो. ये this 1.5 is check right. So I have a question. Devashri, you are saying something? Yes, sir. Sir, यहाँ पे लिखा है Cessna 152 rental. Can you Yes. show us 172 rentals also? हाँ, थोड़े ऊपर जाए. हाँ, यहाँ अगर आप नहीं, देखोगे हाँ, हाँ, राइट देयर. तो यहाँ पे हमने सब एयरप्लेन्स के रेट्स ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए हैं. तो अगर किसी को ये करना है कि हमें पीपीएल भी 172 में करना है तो ये रेट डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से वो कर लेते हो. काफी लोगों को पूरा ट्रेनिंग 152 में करना पसंद होता है. अब ये 152 और 172 जिसको नहीं पता, तो 152 2 सीटर एयरप्लेन है, 172 4 सीटर एयरप्लेन है. अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो आप डेफिनेटली 152 में पूरी ट्रेनिंग कर सकते हो. देयर इज नो इश्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और आपको ये है कि नहीं थोड़ा प्रीमियम करना है तो आप पूरी ट्रेनिंग 172 में भी कर सकते हो. लेकिन जिस तरीके से हमने ये पैकेज बनाया है तो आपको ये पीपीएल हो गया 152 में, इंस्ट्रूमेंट हो गया 172 में,
और उसके बाद नीचे जाओगे सर तो जो So you mean to say उनका पूरा CPL का कोर्स है, तो they are going to get to fly on 152 as well as 172. as well as 172, so you'll get both experience. तो जो भी हम अभी फाइनल फिगर कैलकुलेट करेंगे, जी। that is a combination of 152 plus 172. yes. Again guys, don't worry, we'll be sharing this PDF with all of you. In case आप सिर्फ उसके लिए पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो डोंट डू दैट. हाँ, बट लेकिन अगर आप एस्थेटिक्स के लिए इंस्टा स्टोरी डालने के लिए क्लिक कर रहे हो तो प्लीज डू इट. नहीं Okay. स्टोरी में भी डालो, अच्छी बात, लोगों को भी अवेयरनेस होगी. हाँ, we'll be sharing it in the group and as well as individually we'll be sharing the कि PDF to you. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है अभी, क्योंकि सबको काफी टाइम से हो रहा होगा कि ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन बताओ खर्चा कितना होगा. तो ये अब मुद्दे की बात हो रही है, तो डेफिनेटली. हाँ. Now looking at this figure, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका check ride fees in check ride का hour 1.5 hours is what you're considering for the Yes. check ride. So 1.5 hours for your check ride, 40 hours of minimum requirement as per PPL. So if you are a good student who is able to focus and learn and then eventually 40 hours में complete कर सकते हो आप, तो you will be spending somewhere around $9,517. Can you give it an Indian figure for it? Google में just convert करके बता दीजिए current rate. 8,81,300. तो ये हो गया हमारा पहला कॉस्ट. यू आर डन विथ योर PPL. देन यू विल गो फॉर द सेकेंड कोर्स, दैट इज योर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग. तो इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में अगेन यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स हियर, दैट आई लीव अप टू यू, द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू डू. So you can see the dual time which we are supposed to fly, 45. So this 45 is purely the aircraft. करेक्ट. Indian requirements के हिसाब से you just have to do 20 hours of instrument flying. That is if you're doing your CPL in India. USA has its own syllabus. Because we are training in USA, we are supposed to follow that syllabus so that we can get an US FAA license. So 45 hours for your instrument flying, then you have those entire 45 hours if you consider doing it on 172. तो आपने यहाँ पर पूरा you can see everything is 172 for your instrument rating. So 172 when you fly 14,166. And how much is it in Indian rupees? 800. 13 lakhs 800. This is one expense. So tell me, how much time would it take for someone to clear the stage 2, which is instrument rating? इंस्ट्रूमेंट 1.5 से 2 महीने में हो जाता है हमारे यहाँ पे. एंड मैनेज टू, अभी काफी लोग ये मिनिमम आवर्स में भी कर रहे हैं. मैं आपको एक और चीज कहना चाह रहा हूँ, जो दुनिया में कोई फ्लाइट स्कूल नहीं करती जो हम कर रहे हैं, वो ये है कि जो भी लोग ये मिनिमम टाइम जो हमने यहाँ पे दे रखा है, मिनिमम आवर्स में जो भी कंप्लीट करते हैं, तो उसकी चेक राइड फी हम रीइंबर्स करते हैं. तो टेक्निकली आपकी चेक राइड की फी फ्री हो जाएगी. तो ये अब इसके पीछे 2 रीजन है. एक तो ये है कि आपने कम टाइम में पढ़ाई करना सीख लिया, अब उसका इफेक्ट एयरलाइन में भी होगा. जब एयरलाइन में जाओगे वो लोग देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इसको हम हायर कर सकते हैं. एक क्वालिटी ये है कि इज अ क्विक लर्नर, ही और शी. तो आपको खुद ही फायदा है उसका. दूसरा हमने इसलिए किया है कि जैसे आप कम टाइम में कंप्लीट करोगे तो आपका टोटल कॉस्टिंग भी तो बचेगा ना. जैसे पंकज वाले स्कूल में जाओगे तो दे मे फाइंड रीजन कि आपके आवर्स कैसे एक्स्ट्रा होंगे. ये जो 60,000 का हम मैथ कर रहे हैं तो उसके अंदर लिमिटेड आवर्स है. अब स्कूल का तो फायदा वही है कि चलो कुछ भी करके आपके 10, 15, 20 घंटे हम ज़्यादा कर ले तो वो एडिशनल हम चार्ज कर सकते हैं. लेकिन स्काईव्यू की पॉलिसी ये कभी रही नहीं है. हमें आपको वो क्वालिटी ट्रेनिंग भी देनी है, लेकिन कम टाइम में कम एक्सपेंस में. तो आपके फ्लाइंग आवर्स भी कम होंगे, एक्सपेंस कम है, मतलब आप कैलेंडर टाइम भी कम है, जल्दी ख़त्म करके जाओगे, अपार्टमेंट का रेंट भी बचेगा. और मेरा फ़ायदा ये है कि जब आप लोग वो ख़त्म करते हो तो मैं और 50 लोगों को बोल सकता हूँ कि देखो हमारे यहाँ पे कम टाइम में होता है. और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखोगे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो रहा है. ये हमने ऐसे नहीं लिखा हो, ऐसे नहीं है कि अट्रैक्टिव ऑफर आपको शोरूम के अंदर लाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये वो वाला नहीं है. एक्चुअली पीपल डू कंप्लीट इन दिस मिनिमम टाइम. और दूसरा ये है कि जो नॉलेज एग्जाम फी अभी उसकी बात करेंगे तो वो भी जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं तो उसकी वो फी भी हम रीइंबर्स करते हैं.
और जब आप डीजीसीए की पढ़ाई करते हो तो आपको लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 ये तो पॉसिबल चीज़ ही नहीं है। डीजीसीए में पॉसिबल नहीं है, एफए में, यूएस में इट्स वेरी मच पॉसिबल। वो एग्जाम्स यहाँ से बहुत इजी है, तो वो आपका एडिशनल एडवांटेज है। वहाँ पे पढ़ाई बहुत इजी है, काफ़ी स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लाते भी है। तो ये भी आपकी फी एक डिस्काउंट समझ लो, स्कॉलरशिप समझ लो, जो भी है। और एक और रीज़न सर ये है कि काफ़ी बार पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि अच्छा सर डिस्काउंट क्या मिलेगा। इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है, मैं भी पूछता हूँ अगर मैं कुछ खरीदना है तो डिस्काउंट क्या होगा, मेरे लिए क्या प्राइस होगी। तो अब या आप किसी को मिलते हो 15-20 मिनट, आधा एक घंटा जानते हो, तो फिर मैंने एक आध दो लोगों को बोला भी था कि मैं अभी आपको 20 मिनट से जानता हूँ, मैं आपको क्यों डिस्काउंट दूंगा, और अगर मैं आपको दूंगा तो मुझे सबको देना पड़ेगा, इट्स नॉट फेयर। Correct. तो मैंने फिर ये सिस्टम लगाया कि ऐसा कुछ करे कि सबका फायदा है। तो इसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का तो फायदा है ही है, और मुझे मार्केटिंग मिलता है उससे। इट्स अ विन विन सिचुएशन It's a बोथ good साइड। word of mouth when someone is finishing under 8 months or 10 months Yes. at your academy. तो automatically वो चार लोग और बोलते हैं. This keeps happening with us as well. मैं स्टूडेंट्स को डेडिकेटेडली पढ़ाता हूँ. कैप्टन राघव हैज़ बिन टीचिंग वेरी डेडिकेटेडली. तो स्टूडेंट्स अपने आप बोलते हैं दूसरे एकेडमी के फ्रेंड्स को कॉल करके, भाई तेरे एकेडमी में अच्छा नहीं चल रहा है, कोई नहीं इधर आ जा. ओके, वो बोलता है कि सर से बात करके मैं डिस्काउंट दिलवा देता हूँ. तो फिर मैं बोलता हूँ भाई मैं कहाँ से डिस्काउंट दूँ, तेरा दोस्त आ रहा है, इट्स ओके, विल ट्राई आवर बेस्ट टू अकोमोडेट हिम. These things keep happening. Now, to make sure you don't waste your money unnecessarily, that is the agenda again here we have gathered. So let's finish the calculation. Again, we have to wrap up everything under another 30 minutes. So we won't be taking much of your time. Another 30 minutes and we'll be closing. सुरेंद्र प्लीज एक बार बात अपन से बोल देना. It's usually 8:30, 8 o'clock is what I promised we'll finish. Another 30 minutes extend करना है करके एक बार बोल दो आप. Yes. So 13 lakhs 11,800 for your instrument rating. Then the third stage, the single engine. You have to finish these hours. You have to give the check ride. So how much is it costing you? 27,379. Can you again convert it? 35,300. Okay, this is one figure. Last stage, your multi-engine rating, $8,483. How much is it in Indian rupees again? 85,500. Now let's add up everything. Okay, 7,85,000. Please again use your calculators. This figure, then you have 25 lakhs 35,300. Next you have 13 lakhs 11,800. Are you guys adding? Then you have 8 lakhs 81,300. 55 lakhs. This is your entire cost for your CPL. अब इसमें थोड़े additional expenses भी हैं. Okay, so let me show you those. The third party expenses. Let's say your accommodation. Okay. On an average, what do you think my students specifically can finish their training in? As much as I would like to say 8 months, लेकिन थोड़ा बफर लेके चलते हैं. Okay. तो 10 महीने का आप कैलकुलेट करो. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो भी बचेगा उससे आप शॉपिंग करके वापस आना. Correct. बट एटलीस्ट अगर आपके पास वो हायर नंबर रहेगा तो फिर बीच ट्रेनिंग में वो नहीं होगा कि अब पैसों का इंतजाम कैसे करें. Correct. तो तो लेट्स से मेरे स्टूडेंट्स को 10 मंथ्स में फ्लाइंग भी कंप्लीट करनी है और आप वो यूएसए गए हैं तो उनको घूमना भी है. बिल्कुल. They want to explore the city, explore the country. Everyone wants to do that. तो additionally 2 months उसके लिए ऐड कर लेते हैं. तो 12 months. 12 months is what we will consider. And my students are already hating me from there. Okay. So 12 months for your accommodation, 12 into 675. So this accommodation which you are seeing here right now, shared room, it's a fully furnished flat, which means it has gym, it has swimming pool, no electricity bill. Again, does not mean कि आप 24 घंटे सब कुछ यूज करोगे. Okay, use everything wisely. तो आपको no maintenance cost, nothing.
$675 with all the facilities included, you will not find it anywhere. अगर आप खुद से भी accommodation ढूंढोगे यूएसए में, you have to pay the deposit. Let's say you might save $100 or $200. Beyond that you won't save. $400 तो आपको महीने के लगने ही लगने. आप cheapest accommodation खुद से भी, खुद का flat भी shared with your friends and all, if you find $400 with such facilities तो आपको लगना ही लगना है. तो $675 into 12, how much is it costing? 7,50,000. 7 lakh? 7,50,000 is for your 12 months ka accommodation. Okay, so accommodation is sorted. You have all the facilities there. Gym hai, swimming pool hai, kahin जाने की जरूरत नहीं है. At least इन चीजों के लिए. Fitness and health, everything is sorted here. Okay. What happened? हाँ, फिटनेस में as we mentioned, उनको खाना याद आ रहा है. तो हैदराबादी बिरयानी तो आपको यूएसए में नहीं मिलेगी. But apart from that, what you can do is, usually how do your students plan their food? वहाँ पे वो क्या पैराडाइज या पैराडाइज है ना? हाँ, हाँ. हाँ, तो पैराडाइज का एक ब्रांच खोल देंगे वहाँ पे नया क्योंकि अब ये है कि जो अपार्टमेंट्स है फुल्ली इक्विप, तो स्टव, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर सब कुछ है ही वहाँ पे. Okay. स्टूडेंट्स जो है अपार्टमेंट में मिलके अपना खाना वाना बनाते हैं. हाँ. और जो मेरे जैसे होते हैं वो एटलीस्ट मैगी तो बना ही लेते हैं. Correct. और ट्रेनिंग खत्म होते होते वो भी Expert एकदम हो जाते हैं. हैदराबादी बिरयानी वाले मास्टर शेफ हो जाते हैं. True. तो खाने का मैं अभी 2-3 स्टूडेंट्स को फोन करूंगा. उनको मैं काफी, राजवीर को भी पूछ लो आप. Okay. द यूनिफॉर्म साइज ही वाज वेयरिंग हाँ, हाँ, हाँ. जब उसने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और हाँ. अभी जो यूनिफॉर्म साइज वो पहनता है Okay. तो Oh, थोड़ा उसको टाइट हो रहा है. तो okay. खाने का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो लोग वो करते हैं, अगर किसी को बाहर से भी लाना है Yes. तो वो अपना फिर एक टिफिन सर्विस है, इंडियन टिफिन सर्विस भी है. Okay. वो अपार्टमेंट और एयरपोर्ट के बराबर बीच में है, तो आप वो भी लेके जा सकते हो घर पे. Okay. तो ऑप्शंस तो बहुत है, खाने का कोई दिक्कत. इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना वहाँ पे हमारे आसपास. यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम पूरे इंडिया के हर जगह से वहाँ लोग मिलेंगे आपको. तो how much would it cost on an average for them? अगर मंथली खाने का भी खर्चा, रियलिस्टिक फिगर अगर ऐड करना चाहे. मैं जो ये मंथली एक्सपेंस में डालता हूँ तो अराउंड $250 to $300. $300 additionally. Yes. तो ऑलरेडी 675 है. If I add another उसके $300,000, हाँ, खाना रहना सब 900 पकड़ के हम चलते हैं, लेकिन 1000 भी कर लो टू Okay. कीप द एक्सपेंस एस्टिमेट अपना हायर साइड. तो उसके अंदर आपका चलो एक आध 2-4 बार आपने बाहर भी खा लिया. हाँ. रेस्टोरेंट में वो भी अच्छा, बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट है Okay. बहुत बढ़िया, तो बाहर भी खा लिया, कभी मैकडोनल्ड्स भी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हाँ. कभी घर पे भी बनाया. तो ये सब कुछ मिला के दैट इज मोर देन इनफ. तो यहाँ पर इनको $12,000 लग जाएंगे. उनका रेंट, खाना, रेस्टोरेंट का विजिट वंस इन अ वाइल, एवरीथिंग इंक्लूडेड. तो 12,000 कितना जा रहा है फिर उनको? 11,11,000. 11,11,000 शगुन का 11 शगुन का हाँ. अच्छा ये भी है ना कि ये हम 12 महीने का कर रहे हैं, 12 months का. 8 से 10 का तो वैसे हो, हाँ. तो ऑब्वियसली इसमें वो बफर Correct. है ही है. तो अगर 8 to 10 months में भी आप करते हो, another 3 lakhs you can cut it down from the total expense. But let's say higher side ही सब कुछ रखते हैं, because we want a real number, ताकि आपके पेरेंट्स को भी ना लगे इतना बताया अब इतना खर्चा हो रहा है, why is that happening करके. Okay, 11 lakhs, 11,000. And what was the CPL cost entirely? 55? The thing is, 66 lakhs, 24,000. वो फिगर क्या था? 55 lakhs वाला. 55 lakhs, 30,900. हाँ. You just write it, no? 55 lakhs. 13,000. फिर ये आपका 11 हो जाता है. तो what is the cost you are getting now? Okay, 66 lakhs हो रहा है आपको. अब वो जो 55 है ना, हाँ. 55 में एक 10% डाल दो. तो this 55 lakhs, we are going to add another 10% to it. Because not every student may perform with the optimistic figures. किसी की ट्रेनिंग थोड़ी लेट हो सकती है because उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है. We can't expect everyone to get solo in 10 hours or 15 hours. किसी को थोड़ा लेट ट्रेनिंग भी चलेगा. तो additional 10%. Why? Because we want a realistic figure here.
तो 10% एडिशनली ऐड करोगे, अनदर 5,50,000 आ जाएगा आपको। ओके, तो कितना जा रहा है आपको यहाँ पर? पूरा एडिशनल 10% ऐड कर कितना जा रहा है? 71 lakhs। तो दिस 71 lakhs includes your accommodation, 12 months का वी आर अज्यूमिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग, डिलेड, उसमें भी कुछ डिले होता है तो एक्स्ट्रा बफर एरिया, आपका जो बफर आवर्स है वो भी ऐड कर लिया हमने। तो हायर साइड आपको 71 lakhs जा रहा है। अगर आप 8 to 10 months में कर लेते हो तो 2-3 लाख आपका वहां कम हो जाता है। अगर आप फ्लाइंग सही से करते हो, इफ यू शो योर 100% देयर, तो वहां पर आपको 2-3 लाख कम हो जाएगा। तो ओवरऑल 71 lakhs में से 6 lakhs आपके हाथ में है कम करना। हाउ? बी कंसिस्टेंट एट योर ट्रेनिंग। तो 6 lakhs तो वहां पर आपको कम हो जाएगा। इफ यू आर कंसिस्टेंट तो आप 65 फिगर हिट कर पाओगे। तो 65 इज नॉट ऑन अ हायर साइड, एवरेज फिगर बता रहा हूं मैं आपको। हायर साइड यू अंडरस्टूड 60 or 71 lakhs. Average figure 65 lakhs if you are saving on the accommodation by finishing the training faster. ट्रेनिंग जल्दी हो रही है, मतलब आप सही से कर रहे हो सब कुछ, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी वहां पर कम हो रहा है आपको। नाउ इफ यू फॉलो द 10 months का टाइम टेबल वेयर यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग एट अ ऑप्टिमिस्टिक फिगर, academy is trying to incentivize you for being consistent. Why? आपकी फ्लाइंग जल्दी होगी, they can add more students, they will have a good word of mouth. Again in the end, कोई भी अगर कोई कंपनी चलाता है, the company owner's agenda is कि उनकी कंपनी efficiently चलनी चाहिए। I have been teaching all the students, my agenda is my students should pass in the first attempt with the good marks and good knowledge. तो एवरी ओनर हैज द सेम एजेंडा कि अच्छे से उनके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे से उनकी एकेडमी चलनी चाहिए। दैट इज नॉट समथिंग, देयर इज नो अदर एजेंडा बिहाइंड इट, इट इज प्योरली टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्क। तो 65 lakhs इज समथिंग यू कैन लुक एट। लेट्स से अगर ये लोग ऑप्टिमिस्टिक फिगर में फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो व्हाट इज द एड ऑन बेनिफिट दे आर गेटिंग हियर? द चेक राइड फीस व्हिच यू मेंशनड। तो इसको जूम आउट थोड़ा करेंगे, चेक राइट, ये वाले अभी हम हाँ। पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ओके, चेक राइट पे आते हैं। और देयर आर फ्यू मोर एडिशनल एक्सपेंसेस। मेडिकल आपका आता है $150, 140। कैन यू गाइज ऐड दिस? 150, 140, फिर से 140। यू हैव इंश्योरेंस 275, एंड देन पर कोर्स 175 है, विच मीन्स इनटू 3 यू हैव टू डू। PPL नॉलेज एग्जाम 3 है, हाँ। मल्टी एड ऑन का नहीं है। ओके, मल्टी एड ऑन का देयर इज नो सिंगल और मल्टी एक ही के है वो। So 3 exams here, what is the cost? Into 3, 175 into 3. 175 into 3. 5? 520? 5 to 5. तो 5 to 5 इंडियन करेंसी में कितना आएगा? 48,600। ये हो गया, और बाकी एक्सपेंसेस भी इंडियन एक्सपेंसेस में लिख लेंगे, तो ये तो ऐड करके कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज द एडिशन यू आर डूइंग हियर? Including that, 1.5 into 3 years, 1 to 3 years of dual toppers. Is 1,13,900. So this 1,13,900 is for these additional expenses. Okay, one यहाँ से यहाँ तक. Next is your check ride fees. So you have to give your 4 check rides, 4 check rides, which is $4,000. तो you are trying to say अगर student consistently करता है, तो this $4,000 will be reimbursed to the student yes, in the form of scholarship, you can say, or in the form of incentive. So $4,000, how much is it again in Indian rupees? 3,70,400. 3,70,400. So Academy will refund or reimburse 3,70,400 to you if in case you are consistent at your training और आप 10 months के average figure में optimistic figure जो हमने लिखा हुआ है उसमें आप complete कर लोगे। तो whatever the expenses you see here, अगर आप higher side जाते हो तो आपको वो concession नहीं मिलेगा, check ride fees आपको pay करनी पड़ेगी because you are delaying your own training। अगर आप optimistic timeline follow करते हो 65 lakhs, उसमें आपको और
कंसेशन मिल रहा है? नॉलेज एग्जाम पे रिटर्न होती है 100 आउट ऑफ 100 is हाँ 25. तो जिस 48,000 रुपीज व्हाट यू आर सीइंग हियर, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हो, ट्रस्ट मी, अगर आपने इंडियन सिलेबस पढ़ लिया है, डीजीसी एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, यू कैन एज दैट। वो अगर आप 100/100 लेके आ गए ना, मुझे भी टैग कर देना, ठीक है? तो दिस 48,000 विल बी reimbursed to you again. तो 48,000 you will save, 3,70,000 you will save. तो 65 minus 3,70,000, how much would it cost you? 62,30,000? 62,30,000. 61. क्या? 61,30,000, sorry. Why 61? 61 तक. अच्छा सॉरी, 65 में से 4 निकाल रहे हैं ना, गॉट इट, 61 30,000, माय बैड। यस, तो ये तो अफ्रीका से भी कम हो गया ना. अफ्रीका भी तो 65 lakhs बोल रहा है 60 lakhs तो जा ही रहा है आपको आफ्टर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और इंडिया भी 65-70 से कम नहीं है. ऑल द टॉप एकेडमीज इन इंडिया दे आर चार्जिंग यू 60 लाख रुपीस, 60 63 अभी करंट, आप जो भी टॉप एकेडमी का नाम लो 63 लाख वो लोग बता रहे हैं। ऑन पेपर 63 है, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको लग ही जाएगा, खुद के एक्सपेंस और 3 साल लगेंगे वो वाला. So now you decide. So this is all again. You have questions. We'll open up the questions to you. तो 63,30,000 आपको मैं बता रहा हूँ आफ्टर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स। उसमें आप अगर अपने घूमने का खर्चा भी लगा लोगे, लेट्स से नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर द कंट्री, तो सर बताइए अगर आप कोई एक ट्रिप प्लान करता है तो कितना? 1500-2000 में तो कोई अच्छा ट्रिप हो ही जाएगा. 2,000 वाला ट्रिप हो जाएगा. हाँ लाइक या तो- प्रॉपर हाँ, एंजॉयमेंट वाला। हाँ हाँ उसमें जैसे कि डिज्नीलैंड उसमें है किसी को क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग वाटर भी इंक्लूडेड है। सब कुछ. हाँ 1500 to 2000 आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम. ओके $1,000 में भी हो जाएगा घूमना फिरना. राइट। हाँ तो 4,000 का हम क्या 3 लाख देख रहे थे ना, तो आप पूरे साल में 4 ट्रिप भी करते हो, दैट इज द मैक्सिमम यू विल डू 4 ट्रिप्स। आपको जो कंसेशन मिल रहा है ना, कंसिडर इट एज योर ट्रिप का एक्सपेंसेस। तो 65 lakhs इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, इतना आपको लग जाना है। उसके अलावा और भी आप थोड़ा सा प्लेन टिकट्स, यू हैव टू गो टू यूएसए एंड यू हैव टू कम बैक फ्रॉम यूएसए, तो अनदर 2 लाख रुपीज फॉर दैट, तो 67 lakhs लगेंगे आपको। वीजा प्रोसेसिंग का जो फीस होता है, मुझे लगा पिज्जा की बात कर. नहीं वीजा. यस यस, वीजा का आपको रफली वीजा प्रोसेसिंग में, स्लॉट बुकिंग में आपको 40 to 50,000 रुपीज लग जाता है। हमने जो कॉलेज एडमिशन फी होती है 50,000, वो ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड है। जो ये फिगर हमने बनाया है दैट इज ऑलरेडी देयर। तो वीजा का आपको एडिशनल 50,000 यू कैन कंसिडर। What else comes to your mind? Any other expenses you may think of? फ्लाइट का भी तो 1 लाख की हो जाती है. आना और जाना मैडम को बिजनेस क्लास में अगर जाना है 2 लाख लगा, तो 2 लाख तो हो जाती है. ठीक है. हाँ वन वे you're saying? रखो 2 लाख रखो. ठीक। हमें तो हायर नंबर पे ही Higher number पे ही बफर रहेगा जितना. Correct. 67,50,000. Any other expense which comes to your mind? Think. Landing fees. लैंडिंग फीस नहीं है सर हमारे वहाँ पे. Okay. हाँ Sir, insurance money. हाँ इंश्योरेंस आ गया है इसमें. यहाँ पर एयरक्राफ्ट रेंटर्स इंश्योरेंस है। रेंटर्स मतलब एयरप्लेन रेंटर्स. स्टूडेंट्स you're talking हाँ about. हाँ तो ये स्टूडेंट का इंश्योरेंस है। एयरप्लेन. हाँ पर स्टूडेंट $275. ओके। उनको पर्सनल इंश्योरेंस भी कुछ लेना होता है क्या? लेट्स से दे आर वो गोइंग। जो मेडिकल इंश्योरेंस वो हाँ, हाँ। इंडिया से लेके ही आते हैं, जैसे बजाज आलियांज, हाँ, एक यहाँ की कॉमन AIG, ये सब. तो वो जो लास्ट मैंने देखा था 30,000 रुपए की 1 साल की पॉलिसी होती है. $1 $30,000। million कवरेज, $2 million कवरेज. हाँ, तो वो होता है. ओके। और मैं रेकमेंड भी करूंगा सबको कि लेके आओ. आज तक Personal किसी को insurance. यूज नहीं करनी पड़ी, लेकिन अगर कुछ हुआ यूएस में तो फिर वहां पे डॉलर Claim में कर होगा. उससे बेटर है कि ये 30,000 में मेडिकल आप यहाँ से ही करवा के आना होता है. लेट्स से यूएसए में उनको बुखार आता है, कुछ भी होता है, फ्रैक्चर होता है,
तो वो इंश्योरेंस में कवर हो वो सकता हो जाता है। Okay. वो सबकी अब कुछ पॉलिसीज होती है वो कैशलेस टाइप, कुछ होती है कि आप डॉक्टर को जाके आओ फिर बिल सबमिट करो फिर वो तो, है। लेकिन होता है बहुत सी पॉलिसीज Okay. ऑप्शन So 30,000 for that medical insurance जो आप इंडिया से खुद के लिए पर्सनली करवा के लेके जा रहे हो. What else could be the expense, guys? By the way, your name? Faiz. जी फैज, बताइए क्या सवाल है आपका? Anyone? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि इंस्टॉलमेंट्स कितने करने हैं। तो अब मैं बताऊँ, जब वो मैं राजवीर का एग्जांपल दे रहा था ना, वो जो स्कूल में गया था और ज्यादातर स्कूल में आई एम श्योर पंकज का भी वही होगा कि आपको या तो 25% का इंस्टॉलमेंट होता है, 4 इंस्टॉलमेंट 25% का, या तो 50% एक अभी करो एक बाद में करके खत्म करो। बाकी जगह ये होता है, हमारे यहाँ पे ओनली $2,500 एट अ टाइम। तो कुछ जो भी रेट से आप कर रहे हो तो $2,500 एट अ टाइम, 2,50,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट तो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स है। अब होता क्या है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो आपको $2,500 मतलब 2.5 लाख क्या आ रहा है, 2,40,000। हाँ तो 2.25 लाख पकड़ लो या तो 2.5 लाख पकड़ो। तो 2.5 लाख का आपने इंस्टॉलमेंट किया। अब जैसे आपने फ्लाइंग की, ग्राउंड की, बुक्स लिया, ये वो, तो जो भी एक्सपेंस उसमें से जाएगा, तो वो जब आपका अकाउंट $500 पे पहुंचेगा, $500 पे पहुंचेगा तो आपको फिर से 2.5 लाख का इंस्टॉलमेंट करवाना है। वो मंथली नहीं, वो पहले जो आपका स्टार्टिंग होगा फ्लाइंग का, तो आपको हफ्ते 10 दिन में वो करवाते रहना होगा। जितना ज्यादा फ्लाइंग होगा उतना वो डिडक्ट होगा। सब डिडक्शन होता है पर आवर वाइज। तो शुरुआत में आपने फ्लाइंग की तो पहले रोज के 1.5 से 2 घंटे की फ्लाइंग होगी, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो फ्लाइंग आवर्स बर्न आउट करने में। फिर जैसे आप एडवांस स्टेज में जाओगे तो आपकी रोज की 6 से 8 घंटे की फ्लाइंग होगी। Cross countries, you mean to say? हाँ, तो शुरुआत में आपके ये जो 2.5 लाख का है, पहले दूसरे वीक में तो 10-10 दिन वो चलेगा। फिर जैसे फ्लाइंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका वो बैलेंस भी कम जल्दी हो जाएगा, तो फिर से 2.5 लाख करना है, फिर से 2.5 लाख करना है। तो काफी बार पेरेंट्स ये करते हैं, जब आते हैं वहां पे ट्रस्ट बैठ जाता है कि हाँ हमको जो बोला है वैसे ही है, तो फिर वो 2.5 लाख से ज्यादा के ही अमाउंट करते हैं, तो इतनी जल्दी आपको डिपॉजिट तो इन Yeah, exactly that. Like my question initially, how much would we need to pay each of us? फॉर एडमिशन Visa, let's say visa हो गया, everything is done. Now we want to go to your Sky. care. How much we need to pay from India? Say वहाँ के 2.5 लाख. 2.5 लाख। You sure about I have 1, 2, 3, 4 cameras and 20 people looking. You know, so her confusion is Yes, and I know it sounds surprising. it? Yes. So, yes, ma'am. 3 lakhs initially, and then I think you're talking about it. Once I'll go there, and then you will be asking for 2.5 lakhs. No. Initially, only I have to pay you. 2.5 लाख। तो again the confusion is 1 second. So, और आपका जो रिएक्शन था ना बाकी लोगों के लिए, दिस इज वेरी रियलिस्टिक। शायद आपने थोड़ा रिसर्च किया है इसके बारे में। बाकी स्कूल्स में ये होता है, जैसे मैं राजवीर का एग्जांपल लिया, उसका पहला डिपॉजिट था 7 लाख रुपए का, $8,000। तो 7 लाख रुपए का डिपॉजिट आपको वहां पहुंचने से पहले, तो जो हमारा है 2.5 लाख। And इसमें $15,000. ये बिल्कुल है, That's नहीं है, 15 है, 20 भी है, और 2 इंस्टॉलमेंट में भी है। अभी आप 35,000 दो, बाद में 35,000 दो, वैसे भी है। या say अगर 2.5 हो गया आपकी, like starting में 2.5 history और academic. जी, Let's say I'm saying that monthly can be like this only in the USA. Once out of these. देखो मैं आपको इसका इजी मैथ बताऊं तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट, राउंड फिगर कर लो 70 lakhs, ठीक है, 67 lakhs प्लस एक और लाख, राउंड करते हो उसको 70, तो 70 आपको 10 महीने में करने हैं। तो वो ऐसा उसका फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको हर महीने ही 7-7 लाख रुपए करने हैं, क्योंकि जो सब, एक सेकंड सर, yes. जो भी आपका डिडक्शन होता है दैट्स ऑल बेस्ड ऑन दिस रेट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
पर आवर एयरप्लेन का रेट है $145। तो जैसे आज आपने एक फ्लाइट करी तो आपके $145 उसमें से डिडक्ट होंगे। इनिशियली आपकी फ्लाइंग एवरी डे 1 to 1.5 आवर्स होती है। तो जैसे पहले, अभी तो ये जियो मोबाइल जो है तो फिक्स प्राइस वो होता है $500 में पूरा, ₹500 में पूरा में। पहले जो हच, वोडाफोन, एयरटेल होते थे तो उस टाइम पे आपका रिचार्ज होता था। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। आपने 2.5 लाख का रिचार्ज करवाया, अभी आपने ज्यादा फोन पे बात कर ली या ज्यादा वो क्या है ओटीपी पे देख लिया तो डेटा आपका जल्दी खत्म हो गया। तो सेम चीज आपने शुरुआत में कम फ्लाइंग होती है क्योंकि यू आर एट द इनिशियल स्टेज, तो आपका ये रिचार्ज थोड़ा लंबा चलेगा। नहीं, इधर देखो, इधर तो ठीक है, इधर देखो। हाँ, तो वो थोड़ा ज्यादा चलेगा। फिर जैसे ही आपको थोड़ा, अबे ठीक है, वो अपना काम करेगा, छोड़ दो उसको। फिर जैसे फ्लाइंग ज्यादा हो गई ना तो आपका रिचार्ज आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली। Like $50, it will be alert. यस, तो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट शेड्यूलिंग सिस्टम है। द डे यू अराइव देयर आपको अपना खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो उसमें जब $1 से लेके $100, $50 जो भी आपका चार्ज कट हो रहा है, सब चार्जेस उसमें रहेगा। जैसे आप बैंक अकाउंट में जाते हो तो जितना भी खर्चा है हर एक लाइन आइटम का है कि आपने यहाँ पे ये खर्चा किया, यहाँ पे ये खर्चा किया, डॉलर टू डॉलर हिसाब होता है। तो उसमें आप या फिर आपके पेरेंट्स के पास एक्सेस रहेगा, वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक डॉलर कहाँ जा रहा है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी अकाउंट $500 पे होने को आ रहा है, तो प्लान फॉर अनदर पेमेंट। ऐसे तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगी। यू विल नो कि कब आपका अकाउंट 500 तक जा रहा है, देन यू मेक अनदर डिपॉजिट। What more question? यस। Let's say जस्ट वन सेकेंड, बाजी आप वो माइक उनको दे सकते हो? लेट मी गिव दिस माइक। आस्क देम। let's say नहीं नहीं, आप लगा लीजिए। like my family is order. So what will be the charges do I need? Like I don't need accommodation, I have family. So I won't be needing your accommodation. दैट्स फाइन। So मैं I need to actual figures. तो आपका फैमिली आपको पता है कौन से सिटी में है? So he'll be, I think the family will be transferring in very where your ओके nearly and to your case. So that's how it's out. ओके, तो जो हमारे एयरपोर्ट से अगर हाफ एन आवर के डिस्टेंस में है आपके रिलेटिव का, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ठीक है, वहाँ पे रह सकते हो। अगर कोई दूर है तो हम वो रेकमेंड नहीं करते क्योंकि आने जाने में फिर लेसन डिले या मिस हो ही जाता है। ट्रैफिक वहाँ पे भी है। अगर आपने आसपास कहीं पे है, यू आर मोर देन वेलकम टू स्टे विद देम। तो ये जो 675 पर मंथ है, ये 12 मंथ्स का इनको। हाँ, तो ये आपके 7.5 लाख चले जाएंगे। आप यू आर सेविंग दीज 7.5 lakhs ऑन अकोमोडेशन अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हो तो आपको वो पे नहीं तो कर 70 lakhs में से जो हायर साइड हमने सोच के रखा है कि मैक्सिमम इंक्लूडिंग अकोमोडेशन आपको जो 70 लाख रुपीस लग रहा है, उसमें से आप 7.5 lakhs निकाल सकते हो। तो हायर साइड आपको 62.5 lakhs लगेगा फॉर योर एंटायर सीपीएल ऑन द हायर साइड। ऑप्टिमिस्टिक जाओगे आप, उसमें से 3-4 लाख और कम हो जाएंगे आपके। यस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इट्स लाइक पे एज यू गो। आप जैसे जैसे फ्लाइंग करते जाओगे, जितनी ज्यादा फ्लाइंग करोगे आप, उतना आप फीस भरते हुए जाओगे। लेट्स से यू पेड फॉर 10 आवर्स, आप 10 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइंग कर सकते हो। आपने 10 आवर्स फ्लाइंग कंप्लीट हो गई, आपका जो फीस भरा था एग्जॉस्ट हो गया, अभी आप फिर से फी पे हो। यू डोंट वांट टू ट्रांसफर इन स्मॉलर अमाउंट्स। जितनी बार ट्रांसफर करोगे उतना आपको चार्जेस लगते जाएगा। तो इससे अच्छा आप एक बल्क में भी ट्रांसफर कर सकते हो। Let's you play for 2 hours. Is that possible that I will say I'll have see yeah, I will pay you just for 2 hours right away. I want to go for flight. So is that you have that this one? देखो उसमें क्या होता है, Yeah. मैं समझ गया और ये पहली बार क्वेश्चन भी नहीं है। तो मैम का क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास मुझे छोटा रिचार्ज करवाना है
तो छोटा रिचार्ज भी आप करते हो कि नहीं? तो आंसर ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर सिस्टम है इस हिसाब के है कि आपकी ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। आप वहां पे आ रहे हो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, आपकी ट्रेनिंग चलते ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए $2500 एट अ टाइम तो आपको डिपॉजिट करना ही करना है। अगर आपने छोटा रिचार्ज किया तो जब तक आपका अकाउंट 2500 तक नहीं आता आपकी ट्रेनिंग स्टॉप हो जाएगी, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। और अब जैसे वो भी तो सबसे फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट है, आप ही ने कहा कि बाकी स्कूल में 15,000 20,000 जो है, तो हमने 2500 ही रखा है। तो और उसका रीजन भी ये है कि आपको फिर ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। अब जैसे ये हम I-20 देंगे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, तो वो 1 साल का होता है। अगर 1 साल में आपकी ट्रेनिंग नहीं खत्म हुई तो अगले साल जब मैं यहाँ पे वापस बैठूंगा सर के साथ, तो फिर मुझे भी जवाब देने होंगे कि यहाँ से इतने स्टूडेंट्स आए, किसी को इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। और सब लोग वो डिटेल में नहीं जाना चाहते कि क्यों ज्यादा टाइम लगा। उनको ये कि नहीं वो गए थे तो उनको 1.5 साल लगा। So After recharge खत्म नहीं होना चाहिए, फिर I should be keep on with the recharge. yes, I can और ये जो one more detail in that same question कि जो आप I-20 पे आते हो वीजा पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 22 आवर्स ऑफ एक्टिविटी। तो आपको एक वीक में 22 आवर्स का मतलब फ्लाइंग है, ग्राउंड है, कुछ भी ट्रेनिंग के रिलेटेड एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। तो अगर आपने 22 आवर्स की नहीं करी एक्टिविटी तो इट्स इन अ वे वायोलेशन ऑफ वो I-20 का। तो मंथली आपको कॉलेज में बेसिकली अटेंडेंस होना चाहिए। यू हैव टू शो अप टू द कॉलेज, मेंटेन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस एंड एक्टिविटी, ताकि इमिग्रेशन साइड, यूएस वीजा साइड आपको कोई इश्यूज ना आए। इफ सम स्टूडेंट इज नॉट शोइंग अप टू द कॉलेज, देन द कॉलेज विल गेट अ रिपोर्ट ऑन व्हाई द स्टूडेंट इज इरेगुलर, एंड देन आपको फिर डिपोर्ट भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट शोइंग अप टू द कॉलेज आफ्टर एनरोलिंग। like the student is working on that. Could be anything, could be any reason you are not going to the college, you are not doing your training, तो फिर आपको इमिग्रेशन वाले वापस भेज देंगे। नाउ दिस इमिग्रेशन वाला भी सर, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस एवरीवन इज हैविंग हियर इज, यूएसए में हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं? अगर हम करना चाहते हैं तो उसका क्या ऑप्शन रहेगा? M1 और F1 वीज़ा, ये एक लास्ट क्वेश्चन हम रखते हैं। M1 F1 वीज़ा, हम क्या वीज़ा उनको प्रोवाइड करने वाले हैं? वो कौन से वीज़ा पे जाएंगे अगर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे? तो यस, तो F1 एंड M1 का आप कुछ बता सकते हैं? ये जो अभी हमारा वीजा है ये M1 वीजा है। F1 वीजा है वो कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए होता है। M1 वीजा के अंदर आपको उसमें भी वर्क अप्रूवल मिल सकता है। आपको अप टू 4 मंथ्स का वर्क अप्रूवल उसमें मिल सकता है। उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो कि आप इंस्ट्रक्टर बनो वहां पे, देन यू वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर बन के काम करो, दूसरों को फ्लाइंग सिखाओ। तो उससे आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस और हो रहा है। अब आप जाके इंडिगो, एयर इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, बाकी सबके पास 200 घंटे हैं, आपके पास 500 घंटे हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल आवर्स। हाँ, तो आपका टोटल आवर्स बहुत ज्यादा होगा, तो आपको जॉब में भी वो बेनिफिट होगा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। और जी जी, वो है Those instructor hours, the hours which you're telling me, will be counted in our log. एब्सोल्युटली, एंड ऑल ऑफ दोज आर PIC आवर्स। Sir, but then instructor training also costs a lot, right? Costs additional money, right? हाँ, तो इंस्ट्रक्टर रेटिंग कॉस्ट पे मैं अभी बताऊंगा 1 मिनट में। मुझे ये एक जवाब देना था कि वहाँ पे काम कर सकते हैं नहीं, मतलब आप जो पूछ रहे थे कि जो पार्ट टाइम अगर किसी को काम करना है होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, तो सबसे पहला तो मेरा उस पे एक क्वेश्चन है कि क्यों करना है। ये एक माइंडसेट हो गया है लोगों का कि मैं वहां पे जाके काम करके खर्चा निकालूंगा या निकालूंगी। आप 70 लाख की बात कर रहे हो, आप कितना काम करोगे? और वहां पे काम ऐसे जो होता है ना, बहुत वो करते हैं, वो इतना पैसा भी नहीं देते क्योंकि आपको, हाँ एग्जैक्टली, तो आपको पूरा दिन मजूरी करवा के इतना पैसा भी नहीं होगा। वो जो मैं ये जो बात कर रहे हो होटल में काम करूँ, रेस्टोरेंट में काम करूँ,
तो आप ये तरीके से सोचो कि वो काम नहीं करना है, उतना ही काम फ्लाइंग में लगाओ, ग्राउंड नॉलेज में लगाओ, ट्रेनिंग जल्दी खत्म करो। तो आपका एक एक महीने का $675 तो वैसे ही बच जाएगा जितना जल्दी खत्म करोगे। जितना आप फोकस ट्रेनिंग में करोगे, बाहर काम नहीं करोगे, उतना आपका स्टडी बेटर होगा, जल्दी चेक राइट पास होगी। तो वो चीज पे आप फोकस करो। वहां पे काम करके आप कुछ खर्चा नहीं निकाल पाओगे, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और वो अलाउड भी नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर चैनल से हम वर्क अप्रूवल की जो बात कर रहे हैं। सर आप जो आइस के बारे में कुछ बता सकते हैं? आइस, हाँ, बर्फ यहाँ पे हुए। आई नो आइस। Okay, you got it. आइस तो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, लेकिन ये जो आइस है ना, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं वो। तो फॉर द पीपल हु लेकिन डोंट हाँ, नो मैं बताऊंगा एकदम, वो यहाँ में निकालेंगे तो भी मैं ये बताए बिना नहीं जाऊंगा। अब ये तो न्यूज में है ना, मैं ना हर जगह ये एग्जांपल देता हूँ। जो अर्नब गोस्वामी को कोई जानता है? पेरेंट्स, अर्नब गोस्वामी न्यूज चैनल वाले। तो उनका वो ना बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जो उनका पेशा है न्यूज रिपोर्टिंग। इन माय ओपिनियन ही इज नंबर वन रिपोर्टर, नॉट इन ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। जो भी न्यूज, अब मुझे ये बताओ, हैदराबाद में बारिश कब होती है? कौन से महीने में बारिश होती है हैदराबाद में? जून जुलाई। जून जुलाई में। तो अगर ये जून का महीना अगर चल रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो क्या रिएक्शन होगा हमारा? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। लेकिन अर्नब गोस्वामी वो बोलेगा, अरे बाढ़ आ गई हैदराबाद में। हाँ, कि मतलब ऐसे होगा कि अरे जून में बारिश, वो एक Sensation अलग हो ही जाएगा। तरीके से, हाँ। सेंसेशन बना देगा। तो ये जो इमिग्रेशन का भी यूएस में चल रहा है, वो बस वही है। वो प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर तरीके से जा रहे, लीगल तरीके से जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है। करेक्ट। तो आप ये समझो, जो टेक्निकली स्पीकिंग जो 2 नंबर में आते हैं, ओवरस्टे करते हैं, कि आपका वीजा खत्म हो गया फिर भी आप वहां पर हो, ये सब तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है, हमें तो वो करना ही नहीं है। स्काईव्यू का इमिग्रेशन का ट्रैक रिकॉर्ड इज 100%। एक भी बच्चा आज तक आया और कुछ गलत किया, इमिग्रेशन वायलेशन हुआ ही नहीं है, हम वो एडमिशन ही नहीं लेते। सो तो आइस आइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है एकदम, वो हमारी हेल्प कर रहा है। आइस का ये होता है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड। अगर आप अनऑफिशियली वर्क करते हो तो दे आर हंटिंग पीपल, दे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अनऑफिशियली. If in case you are caught, let's say 10 people are working, one could be the unlucky one. We never know who is going to be that unlucky one. If you get caught, let's say you have already done half of your training, you have spent 30-40 lakh rupees, and if you get deported at half of your training, all the 30-40 lakhs which you have spent goes to waste. So when you're spending 70 lakh rupees, why do you want to have a sword on your head where there is a chance you might get caught and you might get deported? सिंपल कैलकुलेशन है। आप में से गाड़ी कौन कौन चलाता है? कार। सीट बेल्ट लगाते हो आपने? अरे यहाँ बोलने के लिए तो हाँ बोल दो। हाँ। तो अगर आपने लगाया सीट बेल्ट और बाजू की गाड़ी जा रही है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, और पुलिस देख भी रहा है उसको और उसको कुछ किया नहीं, तो आपको अनफेयर फील होगा कि नहीं? कि आपने सीट पे, हाँ, सेफ्टी के लिए तो लगाना ही चाहिए, लेकिन इंडिया में वो माइंडसेट अभी धीरे धीरे आ रहा है। ये जो रेड लाइट पे कैमरे आ रहे हैं ना, वो सबको मजबूर कर रहा है, वरना या तो ना तो कोई हेलमेट ना तो सीट बेल्ट, वो तो मैम तो अभी भी नहीं लगा रहे। लगाना स्टार्ट करो प्लीज, सेफ्टी के लिए। लेकिन कंपेरेटिवली, जोक्स अपार्ट, ये है कि आपने रूल फॉलो किया और बाजू में बंदा जा रहा है, रूल फॉलो नहीं किया और पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, आप देख रहे हो पुलिस है वहां पे, तो आपको होगा ना कि मैं क्यों रूल फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सेम चीज हो रही है जो इमिग्रेशन का वहां पे हो रहा है। तो जिन लोगों ने रूल फॉलो नहीं किया, पुलिस उसको पकड़ के कह रही है कि चलो भाई अब Go back to your खत्म करो। हाँ, तो बस वही हो रहा है। तो पुलिस, वो इमिग्रेशन पुलिस अपना काम ही कर रही है और कुछ नहीं है। आप लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप हमारे I-20 पे आओगे, ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग खत्म हो गई, वापस आप नहीं जाओगे, हम आपको भेजेंगे। if the dollar rate changes, तो जो 10% extra buffer margin we have added for 55 lakhs, we have added another
5.5 lakhs. That is considering all these variable expenses. Could be you are a little slow, could be the dollar price has gone a little up. Okay, all of these. अभी तो highest पे dollar price. तो इससे ज़्यादा और ये अभी थोड़ा कम हो सके, ये थोड़ा कम सा होएगा। अगला ठंडा होगा ना, शायद कम हो सकता है, लेकिन सर ने बोला वैसे आपके वो मार्जिन में है ही, तो दैट्स ऑलरेडी तो कैलकुलेट। अभी जो पीक पे डॉलर प्राइस चल रहा है उसका कैलकुलेशन के बाद भी 70 lakhs में आपका हायर साइड पे 70 lakhs में सब कुछ हो जाएगा. अगेन ट्रस्ट मी, इफ समवन इज ऑफरिंग यू एट अ लेसर प्राइस, you are going to get compromised at your training, just like how my previous students have suffered going to South Africa, and same suffering आपको भी देखने को मिलेगा. इसलिए I'm telling you, at least don't do the mistakes which people have already done it. आप भी वही डिसीजन लोगे with the same attractive offers कि इतना कम हो जाएगा उतना कम हो जाएगा, फिर कुछ महीनों बाद मैं आपको भी पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और पूछूंगा कि बताइए और यहाँ तो कि कैसे चल रहा है आपका, फिर आप भी सेम चीज बोलोगे सर मैं आ गया, आप तो खर्चा बढ़ गया है मेरा करके. So we are trying to learn from others' mistakes here. The real figures, if you are entering into aviation, aviation is expensive. There is no doubt in it. You have to plan accordingly. Either you take a step back, leave aviation, और इंडिया में आपको कम प्राइस में भी होगा, लेकिन अगेन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज हियर एंड देयर विथ टाइम और विथ अदर एक्सपेंसेस, डिले होगा. बट आपको एफिशिएंट वे में जाना है तो इतना कॉस्ट तो मिनिमम टू मिनिमम लगेगा ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ वे यू गो. साउथ अफ्रीका में जाओगे ज्यादा टाइम लगेगा और पैसे भी उतने ही लगने वाले. तो ट्राई टू चूज द बेस्ट ऑप्शंस बाय लुकिंग इनटू अदर्स मिस्टेक्स. Again guys, we have to Sir, I Mhm. just had one more question. So, Mhm. what are the reasons, or what are the those rare scenarios where Mhm. visa has gotten rejected? वीजा इंटरव्यूज में पूछ रहे हो आप? Yes, sir. Interviews. तो एज फार एज आई हैव नोटिस्ड, जो भी जिसका भी प्रोफाइल स्ट्रांग होता है इन टर्म्स ऑफ आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स जेन्युइन दिखा रहे हो एक हद तक, नॉट एवरीवन इज शोइंग 100% बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, बट एक हद तक आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स क्लीन है, यू हैव ऑल द सर्टिफिकेशंस विथ यू, आपके एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं है, जस्टिफाइबल ब्रेक है, तो आप और आप एविएशन से कनेक्टेड हो इन सम और दी अदर वे, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा. बट लेकिन आपकी प्रोफाइल खराब है, आप फिर भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, लेट्स से बहुत ज़्यादा ब्रेक है और विदाउट एनी रीजन, नाइदर यू हैव स्टडीड फॉर डीजीसीए, लेट्स से आप डीजीसीए की भी पढ़ाई कर रहे हो उस ब्रेक में, तो वी कैन शो इट एज अ प्रूफ, वी कैन शो आवर एकेडमी का सर्टिफिकेट. तो दिस इज द टाइम पीरियड द कैंडिडेट टुक, मे बी 1.5 year 2 years for the ground classes, cleared the exams and now they are appearing for the flying training. तो जो भी वीजा इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो उसमें जो भी आपका एकेडमिक ईयर का गैप है, दैट गैप कैन बी justified with your DGCA preparation and everything. Account statements आप clean रखोगे, like proof of funds आप दिखा पाओगे, assets आपके इंडिया में parents हैं, and all of these things. Again, we will be preparing you for the interview. आपको कैसे present करना है, कैसे perform करना है. तो everything if you satisfy, तो आपका visa approve ही होना है. Only people who go with 100% fake documents, 100% false, everything false in their profile, उनका 100% reject हो जाता है. So that is a simple scenario. Anything you want to add here? जैसे एक एग्जांपल अभी था, रिसेंटली कोई मुझे बात कर रहा था, तो इस लड़के को पूछा इंटरव्यूअर ऑफिसर ने कि व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, तो उसने कुछ जवाब दिया, और फिर हाँ उसका कुछ उसने जवाब दिया था कि हिज फादर इज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, तो उसको बोला कि व्हाट स्पेसिफिकली, तो वो जवाब दे नहीं पाया, उसको पता ही नहीं था उसको कि उसके फादर क्या करते हैं. देन ही आस्क्ड कि अच्छा व्हाट हाउ मच डज ही मेक इन अ ईयर, तो उसके पास उसका भी जवाब नहीं था. तो दैट टाइप ऑफ रिजेक्शन, उसमें तो कोई रीजनेबल वो है नहीं कि हमने एफर्ट नहीं दिया. अब जब हम I-20 इशू करते हैं बिफोर द गो फॉर इंटरव्यू, तो वी मेक श्योर ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया फिट्स, हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं. देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स कैन आस्क एंड वी प्रिपेयर यू फॉर दैट. तो वो तो सब फिर इट्स नॉट. But again, अगर let's say आप इंटरव्यू देते हो, एडमिशन लेते हो और रिजेक्ट हो जाता है, तो हाउ मच मनी विल यू लूज? यू विल लूज रफली अराउंड 50,000 आपका एडमिशन फीस है कॉलेज का, which is again I guess non refundable. वो रिफंडेबल है. Okay. 400 of that is refundable. So $400 out of $500 yeah. is refundable. तो आपको एडमिशन फी भी रिफंड हम करवा देंगे सर को रिक्वेस्ट करके.
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। एडमिशन फी रिफंड हो जाएगा आपका, लेकिन जो आप वीज़ा प्रोसेसिंग फीस और स्लॉट बुकिंग फीस जो भी पे कर रहे हो, विच इज़ अप टू 40,000 रुपीज़, यू विल लूज दोज 40,000 रुपीज़ अगर आपका यूएस का वीज़ा रिजेक्ट होता है। I myself, I applied for Flying Academy in Canada, USA when I was planning for my training. तो Canada for some other reason I couldn't go. USA मेरा US का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था. Again the same reasons which I mentioned you. All the documents have to be appropriate. Mine weren't. Okay. So yes, everyone has a story. तो 40,000 rupees is what you will waste if in case आपका US का वीज़ा रिजेक्ट होता है. Rest of it is refundable. सब कुछ आपको वापस आ जाएगा. आप स्टार्टिंग में वीजा एप्लीकेशन पे हाउ मच आर दे पेइंग? ओनली $500. Yeah, for the enrollment fees, $500. And then the visa interview visa जाने fee से is $350. There's the visa fee on the US government's website. हाँ, तो So बस are they also paying the $2,500 before going for the visa interview? there is that $350 for the DS-160 form. उसके अलावा I'm not sure. So they don't have to pay $2,500 का first installment for the नहीं college. नहीं नहीं नहीं, वो तो वीजा लगने के बाद बाद ही. हाँ, So हाँ. college fee you will pay only after getting your visa approved. Yes, yes. So your money is not stuck. Initially what you are paying is your visa processing fee and admission fee. Admission fee also, if visa gets rejected, I'll try convincing him for giving a refund to you. Okay. That I'll अभी इनको मैं स्पेशल हैदराबाद की चाय पिलाऊंगा, तो उसके बाद वो डेफिनेटली मान चाय पे जाएंगे. चर्चा. Yes. तो 40,000 rupees is what you will end up wasting. Again, Devashri, अगर you have a thought in your mind कि वीज़ा ट्राई करेंगे, पैसे लगाएंगे, नहीं हुआ वीज़ा, नहीं लगा तो लॉस हो जाएगा. कितना लॉस होगा? 40,000 rupees. No, sir, I'm not concerned about the loss. No, but no, then not you, वो but in एक general I'm रिकॉर्ड saying. हो जाता है ना, एक रिकॉर्ड लग जाता है दैट हमारे पासपोर्ट पे दैट यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ, एंड दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग. करेक्ट. तो यस, वीज़ा रिजेक्शन अगेन आपके ओवरऑल प्रोफाइल पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. हाँ. बट अगेन टू नॉट टू हैव दैट नेगेटिव इम्पैक्ट, इफ यू कीप थिंग्स अप्रोप्रिएट, सारा आपका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करते हो, तो तो वीजा अप्रूव हो प्रोफाइल जाने अगर लगेगा. मेंटेन्ड है बट देन देयर इज अ एजुकेशन गैप, तो फिर हाउ टू ट्रेन फॉर दैट, एंड व्हाट टू एग्जैक्टली से इन द इंटरव्यू. Now that will be case by case basis. तो आप सर को भेजो अपने डिटेल्स वगैरह. Let me look at it कि क्या पोर्टफोलियो है. हाँ. And then we can see if that's उसका doable विल or- ट्राई टू फिगर आउट अ वे Sure. कि उस पीरियड को जस्टिफाई कैसे करें. वन सेकेंड, हैव दिस कैमरा. थैंक Good job. Multiple of rejections. For which country? Okay. What was it? B1, B2? 3 B2 and 1 F2 dependent. अच्छा. तो What is the formality? Yeah, formality. I will get the visa. I can get the visa. from my experience, 99%. But I'll do a call with मुझे इनका नंबर भेजना है. I'll do a yeah. I'll connect you with someone who yeah, नहीं मैं समझ गया. मैं सब समझ गया. Before I will tell you everything. तो मैं एक lady that I know, she has done 3 attempts for B1, B2. नहीं हुआ. उसके बाद कुछ प्रोसेस था उनका, उसके बाद भी नहीं हुआ. But now she is there. She is business owner, citizen. उसके बीच का जर्नी क्या था I don't know. But just because you have prior rejection, डोंट टेल मी इट्स योर वाइफ. नहीं 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 नहीं. तो possibility है. Because I have seen, मैंने ये भी देखा है कि एकदम yeah. They won't be asking me how come you switched your career just into aviation. That is my question. I will know. नहीं, वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन जो भी पूछेंगे उसका सही जवाब भी देना है कि Everything is there in DS-160. And Yes. my papers were genuine. Everything was fine. But still, मैंने देखे ऐसे केसेस. That's why I'm saying कि जहाँ पे ऐसे केस में भी अप्रूवल हो जाता है. And I have also seen कि एकदम strong history है, ये वो है, लेकिन बंदा जाके वहाँ पे ठीक से जवाब नहीं देता तो भी रिजेक्ट हो जाता है. I have seen all sorts of cases. still
change in what you say this in career area. Yeah, hey, I had a student from China. You was working this and now you're here in Of like course. to pay. I'm sure they will ask that. So I'll need to know a little bit more details on your case history so we can see how we can present that. Again, we're gonna keep everything black and white truthful, but yes. I trained for H1B Okay. once, and for some other reason, actually it got revoked, and my employer haven't told me about the reason. Okay. And still, I have been again picked for H1B, and it is showing pending due to the what? So that is actually a good thing that he got picked for H1B. Desperately wanted to go to US. It's not that. I am actually wanted to be in aviation now. Desperately waiting for it. To be a pilot. Trust me. ठीक है. With the also for H1B, I am now I don't want to go. Yeah, so if they ask you, you can say all of this right there in the interview. Everything is there. वो तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, आपका तो इतना क्लियर हिस्ट्री उनको पता है. जिनको जो पहली बार भी अप्लाई करते हैं ना, they are very smart. US Department of State is very smart. They'll figure out if you are say being truthful or not. और वो आपको वहीं पे इंटरव्यू जो आपका वो मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट का ही होता है. वो यही पता करना चाहते हैं कि आप ट्रूथफुली आंसर दे रहे हो कि नहीं. एप्लीकेशन में आपने जो डाला है वर्सेस उन्होंने जो रिसर्च किया, और अब तो ये भी मैंडेटरी हो गया है कि आपको आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक रखनी है. जिसकी भी जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है सब कुछ पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और कुछ नहीं. अभी एक था, किसी लड़की का इंटरव्यू था, तो मेरी ऑफिस ने पूछा इंटरव्यू से पहले कि यू मेक श्योर कि योर सोशल मीडिया प्रोफाइल इज एक्टिव. बोले कि ओ डू आई रियली हैव टू डू इट. तो मेरी ऑफिस ने बोले अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको रखना पड़ेगा पब्लिक. तो उसका कोई वो था कि एक्स बॉयफ्रेंड ने ये किया वो किया. मैं बोला कि तो फिर तो छोड़ दो, तो वो नहीं होगा. अब ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं विच इज सिंपल. आपका कोई जैसे काफी लोगों का ये होता है कि वहां पे आके फिर ना पॉलिटिकल वो करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के ऑपोजिट है. तो वो ये गवर्नमेंट कर रही है कि आप सोशल मीडिया में जो सबको पता चलता है ना, वो आधार कार्ड से भी पता नहीं चलता आजकल. तो ये उनको तो सब पता ही होगा. द डे यू गो फॉर इंटरव्यू उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता ही होगी. तो जस्ट बी ट्रूथफुल अबाउट एवरीथिंग एंड डू द प्रॉपर पेपर वर्क लाइक सर सेड. That's what we can do. Ultimately, what happens is up to them. Sir, and what about agar in the past, if you have a first world country visa, for तो example, देवश्री विल और डू वन थिंग. अभी तो जनरल टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे जो हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आपके प्रोफाइल के रिलेटेड, आई विल कनेक्ट यू विद कैप्टन जय व्यास. तो वो आपको एक मीटिंग शेड्यूल करके आपसे एक 1-on-1 कॉल कर लेंगे. sure, sir. दैट वे आप भी फुल क्लैरिटी से उनका टाइम लेकर आप डिस्कस कर पाओगे. Right, okay. ठीक है, तो डोंट वरी, विद इन दिस वीक आई विल कनेक्ट यू. आप इसी हफ्ते सारा डिटेल्स पूछ सकते हो. Sure, sir. Okay. And anyone from here who want to, have a personalized conversation with Captain, we can try to do that and, continue the conversation. Abhi ke liye, we have to pack up. It was for a limited time period. Next again, फिर से जब हम announce करेंगे, फिर से we'll welcome you all here. And the office is right in this building. So this is what you're seeing is our office. This is our conference area. First floor पे हमारा classroom है. We have all the facilities. Cafeteria है, conference room है, classrooms है आपको. You have dedicated parking spot and everything. So when we try to establish the academy, we made sure that students will have all the comfort possible. जो भी basic requirements है, all of the things are here, right in front of you. Same thing, अगर आप next call में will try to arrange a video call where we will be showing you the Skywave का hangar, flying club, accommodation facility, okay, the swimming pool which I was talking about. I'm eager to try that out once. तो वो सब आपको हम वीडियो कॉल पे दिखाएंगे. For that we can again get on a Zoom call with Captain. तो अगली बार करते हैं. आज के लिए इतना ही.
और उससे पहले उससे पहले जी कैप्टन राघव जो हमारे सबके फेवरेट हैं इधर, ही हैज़ वन वेरी स्पेशल टैलेंट, इज अ गुड सिंगर एज वेल। ओके, तो वो एक 5 मिनट्स अगर आप देंगे तो हम कुछ पेश करना चाहते हैं। अरे वाह ठीक है। Sir, with video on. भाई बस मुझे Yes. गाने को मत बोलना। ओ यस, पंकज तो कैप्टन राघव के फेवरेट है। हाँ सर, हम भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से। All right then, Hello. Dhanush, we have another student with another special talent. So he's a good guitar player. He's nervous, but it's fine. Dhanush. Okay, just 2 minutes and we'll sit in the audience. Yeah, Captain absolutely. can sit here. Yes.